کل کے لیے تم تیار ہو؟ عارب روم میں آ کر پوچھنے لگا۔ وہ سونے کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی۔ ہاں، 10 بجے کا وقت ہے۔ وہ مالا بائی کو لے کر نکلیں گے۔ آدھا گھنٹہ انہیں راستے میں لگے گا اور اس دوران ہمیں پوری پروٹیکشن دینی ہوگی پولیس کو تاکہ وہ قہر سمان والوں کے اٹیک سے بچ جائیں۔ پر یاد رکھنا، اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ مسکان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سر ہلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پاس آ کر بیٹھا۔ وہ غصے سے گھورنے لگی کہ عارف نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے کہ کیا کر دیا؟ اپنی بکواس بند رکھو۔ تم نے میری بیٹی کو کہا ہے کہ میں گٹر کی کیڑی ہوں، 2 دن گٹر میں رہی ہوں۔ وہ گرائی۔ عارف چونکا اور کہکہا لگا کر بل کھاتا بیڈ سے دور ہو گیا۔ اچھا، تو اس نے کہہ دیا تمہیں؟ کافی ٹیلنٹڈ بچی ہے یار، فرما بردار بھی ہے اور معصوم بھی۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ تبھی مسکان نے پاس رکھا ٹائم پیس اٹھا کر اسے مارا۔ وہ بچنا چاہتا تھا پر اسے معلوم تھا کہ وہ نیچے جھکے گا۔ تبھی ایک بار ہوا میں ہاتھ لہرایا، دوسری بار اس نے اس کے جھکنے پر تیزی سے اس کی پیٹھ پر وار کیا۔ وہ کرراہ کر رہ گیا۔ ظالم ناگن، مار دیا! اف! اس کی آہ گونجی۔ کہا نہ جاؤ یہاں سے! وہ چلائی۔ اوہ کم آن یار مسی! شادی میں جو شوہر گھر سے نکال دیں ویسی بے بس عورت لگ رہی ہو، حالانکہ تمہارے اپنے فیصلے دیں یہاں آنے کے۔ قریب آ کر اس کا سر سینے سے لگاتے وہ بولا۔ دفع کرو، بے بس ہوگی میری جوتی، میں تھوک آئی ہوں اس کی دی ہوئی عزت پر۔ آنکھ مسلتے ہوئے وہ بولی۔ عارب نے اسے اپنے گھیرے میں سمیٹ لیا۔ اسپین جانا چاہو گی؟ اس کا سر سہلا کر وہ پوچھنے لگا۔ اب اتنی بڑی قیامت نہیں آئی۔ اس کے غصے سے یہاں آئی ہوں کہ وہ ریلیکس رہے کچھ پل، ورنہ بہت جھگڑا ہوتا۔ کل چلی جاؤں گی مہندی میں۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ اوکے، ایز یو وش۔ اب نکلو۔ وہ اس کے ہیڈ پر کس کرنے لگا تھا کہ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے پھینک چکی تھی۔ عارف ہنستا ہوا اس کا گلا گھونٹنے کے لیے قریب پہنچا کہ وہ گن کا منہ اس کی سمت کر کے باہر نکلنے کا اشارہ دینے لگی۔ تم ایک گنڈی ہو، ناگن، ڈائن، بھوتنی، چڑیل! وہ نہ کر کہتا کندھا سہلا کر وہاں سے نکلا۔ مسکان دروازہ بند کیے بیڈ پر گر گئی۔ عالم جب اسے وہاں سے لے کر نکلا تھا تو اس سے پوچھا تھا کہ کہاں جانا چاہو گی، تب مسکان نے اس کے گھر کو ترجیح دی تھی، اور عالم نے اس کے سر پر بوسہ دے کر کہا تھا اپنے وقار عصمت پر کبھی کمپرومائز مت کرنا۔ اس کے لیے وہی کافی تھا۔ وہ ساری رات اسے سوچتا رہا اور پھر یاد آنے پر اپنی جیب میں پڑے ببل کو دیکھتا مٹھیاں بھینچ دیتا۔ وہ اس ببل کو پھینکنا چاہتا تھا پر پھینک نہیں پایا۔ اس کے سامنے وہ ہلتے سرخ لب گھوم رہے تھے، جنہیں یاد کر کے تھک کر واپس ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی پڑیا میں ڈال کر اس ببل کو جیب میں رکھ لیا۔ فیری اس سے وقفے وقفے سے جا کر پوچھتی، مما آ گئیں کہ نہیں؟ اب وہ کیا کہتا کہ وہ اس مما کا قصہ ہی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے طلاق کے لیے طارق کو کہہ تو دیا تھا، پر اب روح میں بے چینی اتر آئی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکا، نتیجتاً صبح آنکھوں میں سرخ ڈورے گہرائی سے اتر آئے تھے۔ روح میں تھکن پیدا ہونے لگی تھی۔ روز صبح کی طرح اس نے اپنی بیٹی اور اس پر بلینکٹ ٹھیک کرنا چاہا تھا، پر خالی جگہ اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ سے سرسری طریقے سے سلام کرتے بیٹی کو ناشتہ کروا کر اسے نور کے روم میں چھوڑ کر وہاں سے وہ نکل گیا تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی نارمل کیوں نہیں، پر خالی سوال ہی لوٹ آتا۔ وہ مانتا تھا مسکان سے شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ وہ لڑکی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے تو بس اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، کبھی پانے کی چاہ نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ اپنی اصلیت کی وجہ سے اس سے بھاگتی تھی، پر جب اس نے ہاتھ پھیلایا تو پیچھے وہ بھی نہیں ہٹی۔ کاش وہ اپنے ماں باپ کو سبق سکھانے کے لیے اس جنونی لڑکی کا چناؤ نہ کرتا، اور اگر اس نے ایسی بے وقوفی کر لی تھی تو وہ انکار کر دیتی، اور اس انکار میں اپنے روپ میں آ کر ضد پر اڑ جاتی تو آج یہ سب ایسا نہ ہوتا، اور شاید کہیں اگر وہ انکار کرتی تو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا، جس طرح بیسٹ کے کیس کو اس نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس کی کڑی آہستہ آہستہ ملتی جا رہی تھی۔
وہ سیر عالم کے باپ رشید عالم تک پہنچ چکا تھا اور یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا کہ اسے کسی نے کاٹ کر کیچڑ میں پھینک دیا تھا۔ ہو نہ ہو برہان کو 100% شک تھا کہ یہ حرکت اس حیوان کی ہوگی ضرور۔ اس نے اپنی حیوانگی کا نشانہ اپنے ہی باپ کو بنایا ہوگا۔ یہ بھی دیکھا اور حیران ہوا کہ اس بیسٹ کا گھر اتنا چھوٹا اور گھٹن سے بھرپور تھا۔ 2 چھوٹے حبت زدہ رومز پر مشتمل وہ چھوٹے ایک روم کے سائز جتنے صحن والے گھر میں سید عالم رہتا تھا۔ وہ یقین نہ کرتا اگر وہاں کے موجود بوڑھے لوگ اسے نہ بتاتے کہ یہ عالم کا ہی گھر ہے۔ پھر اس کا باپ ڈرگز لیتا تھا۔ اس کی بہن بھی تھی جو اتنے ٹائم کوما میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ انفارمیشن اسے رمشا نے پہنچائی تھی کہ سید عالم کی بہن ہے جس کا نام سمیہ ہے، وہ کوما میں تھی۔ اس کا پاسٹ کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کیوں کوما میں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتے تھے کہ وہ کوما سے لوٹ آئی ہے۔ اس نے سید عالم کے بارے میں بہت جاننے کی کوشش کی، ان محلے والوں سے بھی، پر سب نے جیسے منہ پر کفر لگا لیا تھا، اور پھر جبر وہ نہیں کر سکتا تھا، بس شکستہ لوٹ آیا۔ پر اس شکست کے پیچھے ارمان بھرپور تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ اس شکست کے باوجود وہ کافی حد تک کامیاب رہا تھا اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ ایک چھوٹی سی عمر میں ڈرگز سمگل کرتا تھا۔ ضرور اس ڈرگز سمگلر سے ہی آگے سیریل کلر بنا ہوگا۔ یہ ایس پی برہان الوی کی سوچ تھی کہ وہ خوشی سے اس روپ میں آیا ہوگا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر والا لڑکا اپنی پڑھائی چھوڑ کر ماں بہن کا پیٹ پالنے کے لیے ڈرگ سپلائی کرنے والے اس معصوم کو دماغی ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس کے وجود کے پور پور کو کاٹ کر اس میں درندگی بھری گئی تھی۔ اس کمسن لڑکے کو برف کی تہ پر منہ کے بل ننگا لٹا کر پیٹ پر ہنٹر مارتے ہر طرح کی درندگی پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے بیسٹ نہیں بنا تھا، نہ ہی اس نے خوشی سے اپنا چہرہ کاٹا تھا۔ وہ خوشی سے درندوں کے پاس نہیں گیا تھا کہ اسے دماغی جھٹکے دیں لائٹ کے۔ یہ حقیقت تھی۔ اس کی اب کی زندگی اس کی اذیتوں پر پردہ ڈال گئی تھی۔ اس چھوٹے سے وجود کو بھول گئے تھے جو دن رات ٹھوکروں کے زد میں ہوا کرتا تھا۔ 2 نوالے ایک گھونٹ کے لیے سسکتا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ ایک حیوان ہے، معصوموں کا خون بہاتا ہے۔ وہ معصوم جو سفید لباس میں گھومتے ہیں اور دن رات کے حساب سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ساس کے ساتھ ایسا سلوک داماد صاحب؟ مالا بائی نے سوچوں میں کھڑے برہان کو دیکھ کر تمسخر سے کہا۔ وہ چونکا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو لیڈی آفیسرز کے ساتھ ہتھ کڑیاں پہننے کھڑی تھی۔ سنہری آنکھیں، سیاہ بال، وہ اس عمر میں بھی انتہائی پرکشش، خوبصورت نظروں کو بھٹکانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ برہان کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے۔ کیسی غلیظ مکروہ آنکھیں تھیں اس کی۔ مجھے حیرت ہے قہر زمان نے زندہ کیسے چھوڑ دیا دونوں کمبختوں کو۔ اور ایس پی، تم نے کیسے اس لڑکی سے شادی کر لی جسے میں بیچ چکی تھی؟ تو ضروری تو نہیں کہ وہ پاک۔ شٹ اپ، نام مت لو اس کا اپنی زبان سے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ بپھر کر اس پر گرایا۔ مالا بائی اس کا تیش دیکھ کر پہلے حیران رہ گئی اور پھر کہا لگایا، چل گیا اس کا جادو۔ آخر کیوں نہ چلے گا، وہ بھی تو مالا بائی کی اسے میری نظروں سے دور کرو ورنہ میں اس کا خون بہا دوں گا۔ وہ لیڈی آفیسرز پر دھاڑا جنہوں نے دھکیل کر بائی کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ مسلسل اس کی حالت پر کہا لگا رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھی بھی وہ غلاظت منہ سے ہانکتی برہان کا ضبط آزماتی کہہ لگا رہی تھی کہ اس کا منہ بند کروانے کے لیے لیڈی آفیسر کو ہی کھینچ کر ایک تھپڑ مارنا پڑا۔ تبھی جا کر اس نے زبان بند کی تھی، پر مسلسل بڑبڑا کر بہت کچھ بکتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے وہ سر جھٹک کر سگریٹ منہ میں دبائے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ سامنے اس کی گاڑی، بیچ میں وہ گاڑی تھی جس میں مالا بائی تھی اور پیچھے ASI کی گاڑی تھی۔ وہ سب پورے 10 بجے وہاں سے نکلے تھے۔ طارق جو مالا بائی کا کیس لڑ رہا تھا گورنمنٹ ایڈوکیٹ تھا اور اب اس سے ہی طلاق کا کہا تھا کیونکہ طارق اور برہان کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ گاڑی اپنے سفر کے لیے رواں دوا تھی۔ برہان ونڈو پر کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا پیچھے سے اسے کون سی قیامت گھیر رہی ہے۔
وہ ایک بار نہیں بار بار آیا تھا قہر زمان کے راستے میں۔ اس نے ٹرانسپورٹ پر بغیر چیکنگ کے گاڑیوں کے جانے پر سخت پابندی لگا دی تھی، اور جن پر تھوڑا شک گزرا انہیں حراست میں لے کر پوری ایمانداری سے خفیہ تفتیش کی گئی، اور اس طرح کئی مجرم ان کی حراست میں آئے تھے۔ اس کا انسانوں کے وجود کے ذریعے اسمگلنگ روکنا، لڑکیوں کو بازیاب کرانا، کوٹھے کو بند کرانا اور بائی کو سزا تک لے جانا ایک بربادی تھی قہر زمان کی، جو ایس پی برہان الوی نے اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کمشنر کیوں اس کے راستے کا کانٹا بن رہا تھا، پر اس نے بھی اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے آئی جی سے کانٹریکٹ کیا تھا اور ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا۔ برہان اتنا معصوم بھی نہیں تھا کہ نہ جانتا ہو کمشنر کی روک ٹوک، پر اب اس کے پاس اوپر سے آرڈر تھے، تبھی کمشنر بھی مجبور تھا اس کے سامنے۔ اور کہتے ہیں جب ارادے مضبوط ہوں تو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں، وہی ہوا تھا۔ اس کے مضبوط ارادوں کے سامنے پہاڑ خود بخود جھکنے لگے تھے، اور وہ خوش بھی تھا اپنی اس کامیابی کے ساتھ۔ دفعتاً وہ چونکے، اور چونکنے کی وجہ فضا میں اچانک ڈھا کی آواز کا گونجنا تھا۔ سٹاپ! وہ دھاڑا۔ بیک مرر میں اس نے اے ایس آئی کی گاڑی پر اٹیک دیکھا تھا۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اوہ شٹ! اس نے گاڑی کیوں روک دی؟ عارف نے ہاتھ پر پنچ مارا۔ عارف چونک اٹھا۔ اگر وہ نہ روکتا تو دوسرا اٹیک اسی کی گاڑی پر ہوتا۔ مسکان نے گھورتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا، تو اب کیسے؟ تم دونوں لڑنا چھوڑو اور یہ دیکھو کہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ اٹیک کہاں سے ہوا ہے؟ وہ دور اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے، اس کو فالو کرتے۔ جلدی باہر نکلو۔ گاڑی الٹتے الٹتے بچی تھی، برہان نے انہیں جلدی سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ آئی کانسٹیبل رائفل پکڑے الرٹ کھڑے تھے، جبکہ اچانک اٹیک پر ڈرائیور کو سر پہ کافی گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ اسے دوسری گاڑی کے اندر بٹھا رہا تھا، تب اچانک ہی مخالف طرف سے فضا میں اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کی چیخو پکار مچ گئی، سب اپنی گاڑیاں روڈ پر ہی چھوڑے بھاگ گئے تھے۔ برہان نے بھی اپنی گن نکال لی اور دائیں بائیں سے گھیرتی گاڑیوں پر فائر کرنے لگے۔ دوسری طرف گاڑیوں سے وہ باہر نکلتے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ پولیس اہلکار شدید مقابلہ بازی میں اپنی جان بحق ہو رہے تھے۔ کراچی کے مین روڈ پر اس وقت قہر زمان کے آدمی اور پولیس کے ساتھ عارف، مسکان، عالف تینوں اسلحہ لیس خود بھی گاڑیوں سے اتر آئے۔ بڑا کمینہ ہے، پھر سے دھوکہ دے گیا۔ عالف نے دانت کچکچائے اور سامنے والے آدمی کا نشانہ لیتے آگے بڑھا۔ اس نے تم سے آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کلاشن کوف پکڑے وہ ببل چباتی سنہری آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی لیے بائیں طرف فائرنگ کرنے لگی۔ عارف کی اور اس کی پیٹھ ملی ہوئی تھی، دونوں مخالف طرف فائرز کر رہے تھے، جبکہ عالف برہان کے قریب تھا، جو ان سیاہ نقاب پوشوں کو اچانک اپنی مدد کے لیے دیکھ کر حیران تھا۔ دفعتاً ان گاڑیوں کے پیچھے کئی دوسری سیاہ مرسیڈیز رکیں اور ان سے کلا بازی مار کر نکلتے گاڑیوں کی چھت پر چڑھ کر ان پر نشانہ لیتے۔ کوئی غیر ملکی ہی لگ رہے تھے۔ مجھے یہ صرف بائی کو لے جانے کا پلان نہیں لگ رہا، شاید یہ یہاں عوام کو ہراساں کرنے آئے ہیں۔ عارف کا دماغ تیزی سے چلا، پر عالف کی نظریں نشانے کے ساتھ اپنے بھائی پر تھیں، جو اب رائفل تھامے پولیس اہلکاروں کے خون سے سرخ یونیفارم میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فائرز کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ پاگل آدمی کیا کر رہا ہے؟ مسکان عارف کی پیٹھ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ فضا میں دھند پھیل گئی تھی، پر اس دھند میں ٹھا ٹھا کی آوازیں کان کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ عارف، عالف اپنے تمام ساتھیوں سمیت مقابلے میں تھے۔ برہان! اچانک وہ چیخی جب برہان پر نشانہ لیتے اس غیر ملکی شوٹر کو دیکھا۔ وہ جھپٹ کر کھینچتی ایک سائڈ پر گری۔ کلاشن کوف اس کے ہاتھ سے دور جا گری جب وہ گاڑی کے پاس فائرز کی دھند میں برہان کے نیچے پڑی تھی۔ دونوں کچھ پل کے لیے بول ہی نہ سکے۔ مسکان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو! میں بھی سوچوں ایسے کون سے فرشتے نازل ہو گئے میرے لیے، پر میں کیسے بھول گیا۔ برہان نے اس کی میچی آنکھوں کو دیکھتے طنزیہ کہا۔ مسکان اپنے کندھے پر لگی گولی پہ ضبط سے پڑی تھی، جبکہ برہان اس کے ماسک میں چہرہ دیکھ رہا تھا۔
मुंह क्यों छुपाया हुआ है मिसी मैडम, डरती हो? वो उसका निकाब उतारने लगा। मुस्कान भड़क कर उसे पीछे धक्का देकर उठने लगी। तभी बुरहान ने उसकी टांग को पकड़कर खींचा और उसे वापस खुद पर गिरा लिया। तुम, शट अप, तुम्हें अंदाजा है तुम मरने जा रहे थे? अगर आज तुम्हें गोली लग जाती तो मैं तुम्हारी जान निकाल देती। वो उसकी बात काट कर उस पर घुराई। बुरहान ने हैरत से दोनों अब्रू उचका लिए। ये धमकी है या कुछ और? उसका मुंह अपनी तरफ करता उसने बोलते अपने हथियार संभाल लिए। ये कुछ नहीं एसपी, जुनून है मेरा, वो सिर्फ तुम हो। वो उसकी आंखों में देखती बोली। दोनों की आंखें सारी रात की बेचैनी रत जगह की चुगली खा रही थीं, पर अगले ही पल दोनों ने ही नजरें चुरा ली। इस जुनून का इनाम मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा। उसका गाल थपथपाए वो बोला। उन्होंने गैस फेंका है, ख्याल करना। आरिफ की आवाज उसके कान में लगे आले से गूंजी। वो चौंकी और बुरहान को देखा जो बगैर नकाब के था। ये पहनो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो अपना मास्क उतार कर उसके मुंह पर रखती, कहने के साथ ही जबरदस्ती उसे पहना गई थी और खुद अपनी गोली के दर्द से चलती धोंकने की मानद सांसों को रोके उठकर अपनी क्लाशनकोफ संभाले एक तरफ धुंध में गायब हो गई। बुरहान अभी ठीक तरह से हैरान भी नहीं हो पाया था कि अचानक उसे अपनी गाड़ी के करीब खड़ी गाड़ी, जिसमें उसने बाइक को अटैक होने से पहले लॉक किया था, उसके करीब पांव की चाप सुनाई दी। पांव की धमक बता रही थी कि वो एक नहीं था। उसने गन थामी और उठकर गाड़ी की ओट में हो गया। इसमें है, अंग्रेजी में भारी आवाज गूंजी। एसपी को ढूंढो, खत्म करना है उसे और यहां से जल्दी निकलना है। बीस्ट के आदमी फैल रहे हैं, मरेंगे सब, फास्ट। दूसरी रौबदार दबदबे वाली आवाज बुरहान को अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। एसपी तक पहुंचने से पहले मुझसे मिलो। आलिफ करीब से ही धाड़ कर उन पर झपटा था और एक के बाद दूसरा बार खंजर से उनकी गर्दन पर किया। बुरहान ने झपट कर बाइक का डोर खोलते आदमी को गले से पकड़ा और रीढ़ की हड्डी पर गन रखकर ट्रिगर दबाया। चीख के साथ ही उसने दूसरा फायर उसके हलक में किया जब अचानक से उस पर दोनों आदमी दाएं बाएं से झपटे और गुत्थम गुत्ता होकर नीचे रोड पर गिर पड़े। दूसरी तरफ दाद वालों का टारगेट उन्हें खत्म करना था कि वहां से एक भी जिंदा बचकर ना जा सके। आरिफ अपने आदमियों समेत शदीद मुकाबलाबाजी में था, जबकि आलिफ एक तरफ गुत्थम गुत्था उनकी गर्दनों पर तेजी से खंजर घुमा रहा था, तो दूसरी तरफ बुरहान एक की गर्दन पर घुटना टिकाए दूसरे के मुंह पर पूरी कुव्वत से एक के बाद दूसरा मुक्का मार रहा था और उससे फायदा उठाती दरवाजा जूं खुला, मालाबाई सीटों के नीचे से निकल आई, क्योंकि अंदर फायरिंग से बैठी लेडी कांस्टेबल शहीद हो चुकी थी। फिजा सारी शोलों की लपेट में थी। वो आहिस्ता से वहां से निकली और भागी एक तरफ। कहाँ? वो हाँफती कांपती सांसें रोकने में बमुश्किल कामयाब होती भाग रही थी जब अचानक सामने वजूद के टकराव से वो नीचे जा गिरी। अब आंखें फैलाए धुंध में उस वजूद को पहचानने की कोशिश में थी। जब उसकी मुश्किल आसान करते सामने कुछ करीब हुआ था वो वजूद। मास्क ना होने पर वो मुस्कान को देखती शुश्तर रह गई थी। ब्राउन लॉन्ग कोट, लॉन्ग बूट पर कंधे पर क्लाशनकोफ लिए, सुनहरी आंखें जो जहरीली गैस की वजह से शायद सुर्ख हो गई थीं, सुनहरी खुले लंबे बाल के साथ उसके सामने खड़ी तमस्कुर से देखती मुस्कुरा रही थी। मैं सोचती थी माँ हो, इसीलिए इज्जत से मौत देते पुलिस के हवाले कर दिया, पर तुम्हें तो अभी और जिंदगियां बर्बाद करनी थी। कोटे वाली को इज्जत कहाँ राज आती है, उसने कहते सांसों में तकलीफ देते अपने मुंह पर पलक झपकते सुनहरी बाल लपेट लिए। तुम? वो हलक तर करती शॉक्ड थी, फिर अचानक गिरगिट की तरह रंग बदला। मुस्कान मेरी बेटी, मुझे बचा लो, मैं बदल गई हूं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, मुझे बचा लो। मेरे आरिफ को बुलाओ। शट अप, मेरे भाई का नाम मत लो अपनी गंदी गलीज जबान पर। और चालाक औरत, तुम क्या समझती हो तुम मुझे धोखा दोगी मिसी को? हाँ हाँ हाँ, अगर इतने ही हम तुम्हें अजीज थे तो हमें उन हैवानों के हवाले नहीं करती चंद पैसों की इवज। उस पर गुर्राते
वो उसकी सिमत बड़ी ही थी कि अचानक से उसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया था। एक दर्द भरी आह निकली उसके मुंह से। दूसरे ही पल उसका एक पांव जमीन पर जबकि दूसरा फिजा में बुलंद होता घूमता पीछे खड़े वजूद के गाल पर आ गया था। वो चीखता नीचे गिरा और दूसरे लम्हे संभल कर कलाबाजी लेते पीछे होते उठ खड़ा हुआ और हाथों से मुस्कान को फाइट की दावत दी। वो कोई फाइटर लग रहा था बॉडी से ही। वो धुंध में क्लाशनकोफ एक तरफ फेंक कर उस दावत को गर्दन अकड़ा कर कबूल कर चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे, कंधे से टीसें उठ रही थी, इसके बावजूद वो ये ललकार कबूल कर चुकी थी। वो दोनों तैयार थे, एक दूसरे को देखते रफ्तार पकड़े लपके। वो दोनों मुक्के सामने करता, उनकी कोहनियां अपने पेट में टिकाए मुक्के मुस्कान के पेट में मारने के लिए उसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ मुस्कान उसके मुक्कों को देखकर एकदम लेटने के अंदाज पर रोड पर गिरी और अपना एक पांव उसकी पेट में तो दूसरा उसके घुटने पर मारा। खुद करवट के बल नीचे गिरी। अभी वो संभलता कि मुस्कान कलाबाजी मारकर उठ खड़ी हुई और दोनों घुटनों समेत उसके ऊपर गिरी, साथ ही गर्दन को पकड़कर बाएं जानिब मोड़ा। खटक की आवाज के साथ ही दिल दहला देने वाली भयानक चीख लम्हे को गूंजी और वजूद साकित हो गया। खबरदार जो मेरे करीब आई। उसे अपनी सिम देखकर बाई ने पास पड़े बेजान खूत में लथपथ वजूद से पिस्टल उठाकर उसके सामने की। वो चौंक कर अपने हाथ बुलंद कर गई, जिस पर बाई ने खुशी से कहका लगाया, इतनी खतरनाक हो गई मेरी चूहिया जैसी बेटी कि एक हट्टे कट्टे आदमी को सेकंड में मार दिया। जानती हूं ये सब उस बीस्ट ने किया है। हाँ, माँ ने बेच दिया था। उस अनजान ने बेहिस बेरहम होकर भी मेरे आंसू देखते ना सिर्फ अपनी चादर दी थी बल्कि मेरी जान अजीज भाई की जिंदगी भी बचाई थी। वो गुर्राई, ए चुप कर, मुझे सिखा रही है। एक बार यहां से निकलने दे, तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे खून की सिर्फ मैं नहीं, जमान किंग भी प्यासे हैं। नोच देंगे तुझे। वो किंग तो तुझे नोच ही देगा और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा वो हाल देखूंगी जब तुम अपनी औकात में आओगी। उसका बिस्तर खबरदार एक लफ्ज भी कहा तो। वो चीखती उसकी सिमत बढ़ी उसका मुंह नोचने के लिए कि अचानक ही घबरा कर बाई ने ट्रिगर दबाया। जहां ठा की आवाज फिजा में छाई थी वहीं वो एक पल के लिए साकित हुई। दूसरे ही पल धड़ाम से नीचे गिरी। मुस्कान वो धाड़ा था। बुरहान ने दोबारा ट्रिगर दबाते नीचे पड़े बाई के वजूद का निशाना लिया और वहां गिरी मुस्कान की जानिब तेजी से भागा। पर सिवाय शहीदों के उसे कहीं मुस्कान का वजूद नजर नहीं आया। पुलिस के सायरन, रेंजर्स की धमक उसके सुन दिमाग में गूंजने लगी, पर उसमें हवास कहाँ थे। अचानक उसे भी एक तरफ धक्का दिया गया और उसके पास पड़े वजूद पर फायर हुआ था जो निशाना उसका लिया गया था, पर उसने फिर से बचा लिया था। बुरहान ने बेनान आंखों से देखा। जहां निकाब में आलिफ उसे देखता, अपना लहू बाजू पकड़कर लड़खड़ाता उठा और वहां से गायब हो गया। उसने फिर सिर्फ चीखों की आवाजें सुनी थी। शायद वो उस इंसान को मार रहा था जिसने उस पर निशाना लिया था। इस जंग के दौरान वो सिर्फ ये जान पाया था कि ये जो कोई भी अंग्रेज शक्ल वाले वजूद नमूदार हुए थे वो उसकी जान लेना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ उसे बीस्ट के आदमी किसी हाल में भी बचाना चाहते थे। क्यों आखिर? उसकी नजरें कराहती हुई बाई पर गईं। तुम जैसे लोग ऐसे नहीं मरते। वो धाड़ा था और पास पड़ी क्लाशनकोफ उठाकर बगैर किसी की परवाह किए उसने बाई के वजूद में सारी गोलियां उतारना शुरू कर दी कि अब फिजा में खून की छींटें उड़कर उसके मुंह कपड़ों पर आ रही थीं, जबकि वो तो पहले ही अपने जवानों के खून से उन्हें बचाते खून में नहाया हुआ था। कंट्रोल योरसेल्फ। झटके से उसके हाथों से क्लाशनकोफ छीनकर उसे झटका देते होश में लाए, पर उसके सामने तो वो लहराता वजूद घूम रहा था। उसका दिल किया उसके नाम की दुनिया में धार लगाए कि सब खौफ से सहम जाए। हमने ऐसा नहीं सोचा था। ये इंतहाई खौफनाक था। कई ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, हमारे आदमी मारे गए हैं। आरिब आलिफ के बाजू पर पट्टी करते सुर्ख आंखों से बोला, मिसी कैसी है?
आलिफ ने घूर कर अपना बार बार पूछा जाने वाला सवाल दोहराया। कैसी हो सकती है? जिस तरह की उसने बेवकूफ़ी की है कोई कर सकता है? उस जहरीली गैस में उसने सांस ली है, जबकि अपना मास्क उसने एसपी को पहना दिया, उसके बदले गोली खा ली है। इस हालत में उस आदमी से लड़ी है। वो तो शुक्र था कि खौफ से उस आदमी का शुरू वाला स्टेप गलत था, इसीलिए उसका बचाव हो गया। और फिर उसमें वो कहता कहता रुका जब सईद ऑफिस में दाखिल हुआ। तुम्हारी आज मेहंदी है, जा रहे हो? उसने सीधा आलिफ को मुखातिब किया। नहीं, हालत देख रहे हो, शहर पूरा बंद हो गया है, मीडिया दरवाजे पर ढेर जमाई खड़ी हो गई है, भाई हॉस्पिटल में है, उन्हें जख्म आए हैं, वहां अलग न्यूज बनाई जा रही है। वो गुस्से से बोलता नजरें फेर गया। अच्छा फिर घर कह दो कि तुम कुछ जरूरी काम से दोस्तों के साथ बाहर हो, उसने संजीदगी से कहा। मुझे इससे बेहतर आइडियाज आते हैं, शुक्रिया फोकट के मशवरे का, वो चबा कर बोला कि पलटता सईद थम गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बेहतर आइडियाज नहीं, इसीलिए शराफत से यही कहो क्योंकि वही काम आ सकते हैं तुम्हें। वो जता कर कहता वहां से निकल गया। पीछे आलिफ मुंह बसोरे आरिफ को देखकर गमगीन हो गया। दिल बड़ा करो, इस सब में जाने जाती ही रहती हैं। उसका कंधा थपथपाए वो खुद झुके कंधों से वहां से निकला। पीछे आरिफ ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा, जो करा कर रह गया। इस सब का तुम्हारा भाई जिम्मेदार है, वो धाड़ा और गुस्से से ठा के साथ दरवाजा उसके मुंह पर मारते सुर्खून चलकाती नजरों से उसका चेहरा घूरते वहां से निकला। इतनी लाशें, इतना खून खराबा, इतने शहीद। लोगों में कहराम मच गया था। रास्ते ब्लॉक थे, अवाम हरासा घरों में दुबकी हुई थी, दुकानें सड़कें सुनसान पड़ी थीं। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। टीवी के हर चैनल पर वो उन गैर मुल्की दहशतगर्दों के मुर्दा चेहरे सामने ला रहे थे। कोई कह रहा था कि ये अटैक 20 ने करवाया है, एसपी को अपने केस से हटाने के लिए, तो कोई बाई को लेकर बातें बना रहे थे जिसे एसपी ने खुद मारा था। अलवी हाउस में सख्ता छाया हुआ था। सिर्फ न्यूज चैनल्स चल रहे थे जहां कोर्ट जाते रास्ते में हुए दहशतगर्दों के अटैक और उनमें जाँ बहक होते वजूद को दिखाया जा रहा था। फिजा में जहरीली गैस के असरात खत्म करने के लिए स्प्रे किया जा रहा था, जबकि बुरहान हॉस्पिटल में पड़ा था। तुम्हारी वॉच कहाँ है आलिफ? आरिफ ने कुछ चौंक कर उसकी कलाई को देखा। वो सुबह से नोट कर रहा था। यार वो घर रह गई है, सुबह लेना भूल गया, तुम फिक्र मत करो, वो सेफ है। वो अपनी कलाई को देखता ये बात छुपा गया था कि नूर को गिरफ्त में लेने पर उसे चुभने से उतार कर वहीं रखती थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आलिफ? तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो वॉच तुम्हारे भाई या किसी को भी मिल गई तो वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है उस डिवाइस से, क्योंकि उस वॉच में मौजूद चिप मैंने इस कंप्यूटर से कनेक्ट की है। जब भी तुम कनेक्ट करोगे ये सिस्टम अलर्ट होंगे और अगर वो चिप किसी काबिल बंदे के हाथ चढ़ी तो वो हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है इस घर की। मैं जा रहा हूं आरिफ, डोंट वरी, मैं ले लूंगा, सेफ जगह पर है यार। उसके कंधे पर हाथ टिकाकर वो एक नजर सोई पड़ी मुस्कान पे डालकर वहां से निकला। वो गहरा सांस भर कर मुड़ा तो मुस्कान को उठते पाया। कहाँ? आरिफ उसे बेड से उठते देखकर जल्दी से बोला। कहाँ का क्या मतलब? मेहंदी है आलिफ की। वो भड़क कर उसके सामने आने पर बोली। मुझे मालूम है तुम्हें मेहंदी में जाने की बेचैनी नहीं है, उससे मिलने की है। वो गुस्से से बोला। हाँ है तो एनी प्रॉब्लम? रास्ते से हटो वरना सीधा सईद को बोलूंगी। उसके सहारे अपनी बहन छोड़ जाते हो जो अपनी छोटी छोटी आंखों से बच्ची को हरासा किए रखता है, घूरता रहता है उसे। उसकी धमकी पर आरिफ भौंकों की तरह उसे देखने लगा। मुस्कान? वो सदमे से बोला। ओनली कॉल मिसी, जस्ट मिसी डार्लिंग। उसका गाल थपथपाए वो बोली। तभी ही पीछे आरिफ ने उसके गले में बाजू डालकर उसे कैद कर लिया। तुम्हें अंदाजा है तुम मरते मरते बची हो। आलिम ने मुझे खास करके तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, मैं तुम्हें ये चौखट फलांगने नहीं दूंगा। वो गरजता उसे घसीट कर बेड के सिमत ले जाने लगा। मुस्कान ने एक नजर अपने बाजू को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरी नजर अब्रू उचकाकर उसे। उसका बाजू उसकी नाजुक गर्दन में था और वो उसे आहिस्ता एहतियात से घसीट कर बेड के पास लेकर आया।
अभी उसे बेड पर डाला नहीं था कि जब अचानक ही उसने कोहनी घुमाकर उसके जबड़े पर दे मारी। आ! वो कराह कर उसकी गर्दन छोड़कर अपना जबड़ा पकड़ गया। तभी उसने झुककर उसकी टांग नीचे से पकड़े बाहर को खींचा। वो धड़ाम से पीछे बेड पर गिरा। मिसी! वो धाड़ा। जब उसने पास रखी ड्रिप से मुल्हिका नली को खींच कर निकालते दूसरी भी उठाई और दोनों को जोड़कर आरिफ को शुष्तर देखते उसके हाथ पांव के साथ बांध लिए। अब वो उसकी आंखों में गुस्सा देखती हंस पड़ी। बेटा अल शराफत, मुझे लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, इसीलिए ये लो ऑक्सीजन मास्क। कहने के साथ ही वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाए झुककर उसकी सिलवटों से भरी पेशानी पर बोसा देकर गाल थपथपाती उसकी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल कर वहां से निकली। पीछे वो हूं मिसी करता रह गया। मुस्कान, मेरा बस चले तुम्हारा गला दबा दूं निकम्मी औरत। दांत पीस कर सोचते वो अब ऑक्सीजन में सांसें लेने लगा। बाई की गोली उसे लगने से पहले ही वो लहरा कर उस जहरीली गैस की वजह से गिरी थी और जब आरिफ की नजरें उस पर पड़ी तो वो सब कुछ फेंक कर उसकी जानिब लपका था और उसे बाहों में भर कर वहां से निकला और हॉस्पिटल पहुंचा। तब मालूम हुआ उस जहरीली गैस के साथ उसे गोली भी लगी है और सर भी फटा हुआ है। उसके सर पर 4 स्टिचेस लगे थे। गोली अभी 12 बजे ही तो निकाली थी। 7 दूसरे जख्म भी तो ताजे थे। फिर वो कैसे इस फंक्शन में जा सकती है? शहर की हालत बदतर थी। ऐसे में मेहंदी का फंक्शन पोस्टपोन कर देना चाहते थे पर एक बेटे के लिए दूसरे की खुशियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने शादी में कोई गड़बड़ नहीं की। अलबत्ता आसिया बेगम कमाल साहब हॉस्पिटल में थे उसके पास। डेड बॉडी सबकी उठाई जा चुकी थी। रोड साफ था। शाम तक सारी तफ्तीश हो चुकी थी। वो दहशतगर्द का ग्रोह था जो एसपी को रुकावट समझकर खत्म करने आए थे। बल्कि वहां सामने इमारतों में लगे सीसीटीवी फुटेज से बाई को बचाने के भी कुछ मंजर सामने आए थे, जैसे वो उन्हें वहां से निकालना चाहते थे। अम्मी, अब आप जाएं, घर में नूर फैरी अकेली हैं, मैं कुछ देर में आ रहा हूं। वो उठ बैठा। आसिया बेगम के हाथों से सूप पीता बोला, वहां खानदान के लोग मौजूद हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कुछ खुफगी से कहा। बुरहान मुस्कुराया। लगता है आप नाराज हो गई हैं। ऐसा करें, साथ चलते हैं, 2 मिनट वेट करें। वो अपनी माँ के सर पर बोसा देता हुआ बोला, आप लगता है सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही घूरते गुजार देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि बुरहान अलवी मुझे तुम पर फख्र है। वो खुद को घूरते अपने बाप को सामने बैठा देखकर मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला, बकवास बंद करो। तुम जैसे बेटे से अल्लाह ना ही देता तो बेहतर था। पल पल में मेरी जान निकालते हो। तुम्हें मेरी हालत का एहसास है बुरहान अलवी? अल्लाह न करे, क्या होगा मेरा जब मेरे ऐसे जवान बेटे को कुछ हो जाएगा? मैं तो पागल बन जाऊंगा, दीवारों में टक्करें मारता फिरूंगा। वो कब के भरे गुस्से गजब में बैठे थे, बोलने पर आए तो धाड़ने लगे। वो मुस्कुराता उनकी आंखों में आंसू देखकर मचल उठा था। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे। वो रिश्तों के मामले में काफी पत्थर साबित हुए थे, पर आज आखिरकार पत्थर भी पिघल गया था, क्योंकि औलाद होती ही ऐसी शय है, पहाड़ों को पानी की तरह पिघला दे। कुछ नहीं होता अब्बू, प्लीज, आपका भरोसा ही मेरी हिम्मत है। जब आप मुझे कुछ नहीं समझेंगे तो मैं खुद से क्या उम्मीद रखूं? वो बोलता बेड से उतरकर कमाल साहब के पास आते हुए रुका। नालायक, नाफरमान औलाद हो तुम मेरी। यही तुम्हारी हिम्मत के लिए काफी है, क्योंकि मेरी नाफरमानी से ही तुम्हें हिम्मत मिलती है। वो उसे सीने में भींचते गुस्से से बोले। बुरहान कहाँ लगा उठा। अब ऐसा भी नहीं है, मैं काफी फर्माबरदार बच्चा हूं। सिर्फ आपको ही मेरे वो गुण दिखते नहीं हैं, बाकी माशाल्लाह हूं मैं। उसने दुहाई दी। आसिया बेगम पास आकर उसके सर को पकड़े झुकाकर माथे पर बोसा देती उसे साथ लगा गई थी। दूसरी तरफ अपने बाप को आंख मारते उन्हें घेरे में लिया। तो मतलब गुस्सा खत्म? वो शरारत से देखता पूछने लगा। कमाल साहब सर हिलाकर रह गए। दाद नहीं आया अभी तक? वो हैरान था, उसका लाडला भाई उसकी इस हालत पर भी नहीं आया, जबकि यहाँ कांस्टेबल से लेकर हाई रैंक ऑफिसर्स, आईजी साहब, डीआईजी तक आए थे, क्योंकि वो दहशतगर्द आम नहीं थे, बड़े खतरनाक थे।
कई ममालिक की पुलिस सीक्रेट सर्विस उनके पीछे थी, जहां ये दहशत गर्द फैलाकर भाग जाते थे, पर यहाँ ये भूल गए थे कि ये पाकिस्तान है। यहाँ मैली नजर रखने वाले की गर्दन पर लात रखी जाती है, उसका सर काट कर पांव ठोकरों से खेल खेला जाता है। बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर है, उसने न्यूज़ सुनी थी और अब आने ही वाला होगा। बुरहान ने सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि उसकी अब की हरकतें उसे मशकूक लगने लगी थी। उसका पुरइसरार सा अंदाज एक पुलिस ऑफिसर से कैसे छुप सकता था, इसीलिए ही बुरहान कुछ सोच में चला गया। चोटों की वजह से वो रेस्ट में था और घर के फंक्शन की वजह से वो इस वक्त घर जा रहा था। जगमग करते मेहंदी रंगेरदार लहंगे में नाजुक सी हील्स पहने, खूबसूरती से किए गए मेकअप, लबों पर डीप सुर्ख लिपस्टिक लगाए, नफीस सी हीरो की ज्वेलरी में वो इंतहाई खूबसूरत आतिशफिशां दिख रही थी। आप तो हर रूप में गजब हैं। डिजाइनर उसका स्टाइल से दुपट्टा सेट करती बोली। नूर मध्यम सा मुस्कुराई। मेहंदी के लिहाज से हर तरह के गीतों की नीचे से आती औरतों की आवाज के साथ ढोलक की आवाज अंदर सहमा रही थी। डरिए नहीं मैम, इंजॉय करें, यही तो खूबसूरत दिन होते हैं जिंदगी के। ब्यूटिशियन उसके गाल उंगलियों से छूते हुए बोली। नूर जबरन मुस्कुराई। रात जब वो उसकी सांसों की तपिश से सहम कर सो गई थी, पर सुबह जब आंख खुली तो वो उसके पास नहायत ही करीब सो रहा था। उसकी एक टांग उसके ऊपर थी, जबकि दूसरा बाजू उसकी कमर में। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह उसके साथ छुप गई थी। ऊपर से उसका वो लम्स याद करती पानी पानी हो गई। फिर उठने के लिए भी आंसू बहाना, रोना, काफी मिन्नतें करनी पड़ी थी उसे, तब जाकर कहीं आजादी मिली थी उससे। नूरुल ऐन वो ब्यूटिशियन से ज्वेलरी सेट करवा रही थी, तब आसिया बेगम के साथ बी रूम में दाखिल हुई। बी नूर की जैसे भीड़ में अपनों की तलाश खत्म हो गई, भागकर उनके सीने से लगी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारी छोटी सी दुल्हन जैसे हूर लग रही है। आसिया बेगम ने कहते उसके माथे पर बोसा दिया तो वो बी से मिलकर आसिया बेगम के गले लगी, शर्माई सी। चले बेटा, बाहर सब आ गए हैं। वो दोनों उसे ले जाने लगी। शोर हंगामा उस दिन की निस्बत आज कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि आज मेहंदी की रात थी। हाय हाय, आसिया चांद लाई है कसमें। सीढ़ियां उतरकर वो जब लाउंज में आई तो उस पर नजर पड़ते ही खानदान की एक औरत ने बेसाख्ता कहा। माशाल्लाह बोले बहन, मेरी मासूम सी बच्ची है। आसिया बेगम ने फौरन टोका तो वो माशाल्लाह कहती नूर की आंखों को खैरा करते रूप को देखने लगी। चाची फेरी मेहंदी रंग के फ्रॉक में बालों की पोनी बनाए उसके सामने आई। वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, किसने रेडी किया? मम्मा आ गई? वो उसे प्यार देती बोली। नहीं, बाबा तो कुछ देर हुई है आए हैं, आराम कर रहे हैं, पर मम्मा अभी तक नहीं आ रही। ये दादो ने तैयार किया है। अच्छी लग रही हूं ना? उन्होंने मुझे बहुत प्यार करके कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो। फेरी जोशो खरोश से बता रही थी। नूर हैरत से सामने बैठी आसिया बेगम को देख रही थी, जो खुशी से इंतहाई डांस की तरह औरतों के फोर्स करने पर हाथ घुमा रही थी। वहीं बी का भी यही हाल था, वो भी लड़कियों के जोर पर हाथ घुमाने लगी थी। हूर नहीं आई अभी तक? उसने दिल में चलता सवाल किया और राह में नजरें अटकाईं। लहक चहक कर गाते समीर, जिशान, फहद, बिलावल, सारा टोला अंदर दाखिल होता बुलंद आवाज में गाने लगा। लड़कियों को का कहकहे से बुरा हाल था। वही नूर होंकों की तरह उन्हें देखने लगी, जिनके बीच ग्रे 3 पीस सूट में कहकहा लगाता वो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। बगैर ख्याल लिहाज के उसके यूं देखने पर करीब आते दांत ने आंख मारकर उसे सटपटा डाला। वो बौखलाई, सुर्ख सी घबराई, सिमट गई खुद में जब वो बड़े रौबदार अंदाज में आकर उसके साथ बैठ गया। हाय, आज तो लेडीज फंक्शन है, आप सब क्यों आए हैं? एक लड़की ढोलकी से उठकर बुरा मानती हुई बोली। आसिया बेगम खुद दाद के यूं अचानक तैयार होकर आने पर परेशान थी, जो नूर के साथ चिपक कर बैठ गया था। बेबीज, क्योंकि लेडीज के आगे हम हैं मीन्स बॉयज।
फहद ने कॉलर झटकते कहा तो वो मुंह बसोर कर बैठ गई, जिस पर वो कहकहा लगा उठे। उन सब के यूं फैल कर बैठने पर आसिया बेगम समझ गई थीं कि अब वो यहाँ से नहीं उठने वाले। चाचू? फैरी नूर की गोद से उतरकर दाद की गोद में आ गई। क्या हुआ चाचू की जान, मजा नहीं आया चाची के पास? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है उसके करीब रहना, वो नूर को बताने के लिए मायनी खेजी से बोला, जिसे ना समझती फैरी हंस पड़ी। अरे मुझे तो आप दोनों ही अच्छे लगते हैं, वो खिलखिलाई और उनके गले लगती दाद की गोद में बैठ गई। जबकि नूर की हथेलियां भीग गईं पसीने से, वो लब काटते हुए बी की तरफ बेबसी से देखने लगी, जिनका रुख आसिया बेगम की तरफ था। ओ भाई, दुल्हा साहब आ गए हैं, शुरू करो। फिर से हमारी भाभी की मेहंदी है। ढोलकी लड़कियों से छीन कर खुद संभालते वो अपने भारी हाथ मारते बेसुरे आवाजों में अपने हलक फाड़ने लगे। फहद के गाते गाते अचानक समीर ने बीच में अपना फिक्रा छोड़ा। जहां दाद का उड़ता जूता आया था, वहीं लड़कियों के कहकहे जोरदार पड़े थे। वो उन्हें सजा के तौर पर लाया था गाने, और सब ने रात जमकर गाना याद किया था, अब गा रहे थे। जहां उनके लाउड स्पीकर जैसी आवाज से सब कानों में उंगलियां डाले बैठी थीं, वहीं ढोलक की थाप पर सीना मुंह को आ जाता। अल्लाह अल्लाह करके गाना एंड पर पहुंचा, जहां सब ने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा हैं। वहीं सबका शुक्रिया अदा करते तमस्कुर भरी हालत वाले कह कहे वसूल करके रुमाल से पसीना साफ करने लगे। नूरुल ऐन लब भींचे उनकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाने लगी, जो कालीन पर एक साइड बैठे थे, और अब उनकी जगह वापस लड़कियों ने संभाल ली थी और प्यारी मीठी आवाज में गाने गाती उनका मजाक बना रही थी, जो वो कहां बर्दाश्त करने वाले थे। एकदम मैदान में उतर आए और मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें फैरी भी भागकर समीर वालों के बीच में बैठी। सबकी नजरें उनसे हटी तो दाद उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाने लगा। रात नींद आई सुकून से। गंभीर भारी लहजे में वो उसके झुके सर को देखता पूछने लगा। नूर आंखें मीची, उंगलियां आजाद करवाने की कोशिश में छुई मुई सी हाथ मड़ोड़ती बेबस हो गई। दाद प्लीज, शर्म से कट कर वो रोने जैसी आवाज में बोली। दाद ने बमुश्किल कहकहा दबाया। क्या हुआ, डर गई क्या? रात मैंने तो बहुत गहरी नींद ली, बहुत पुरसकून, मजेदार, दिलकश, मदहोश सी। वो बोझल होते लहजे में मसरूर उसके कानों में सरगोशी करने लगा। नूर को लगा अभी अगर वो वहां से ना उठा तो जरूर यही बेहोश हो जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी जब अचानक ही अल्लाह ने उसकी सुन ली। समीर, फहद, नवीद सब ने उसकी टांगों को पकड़कर सजे तख्त से नीचे खींचा। वो धड़ाम से इस अचानक अफ्ताद पर उनके पास गिरा। आजा भाई, इसके लिए जिंदगी पड़ी है, हमारी इज्जत बचा, वो कहकहा लगाते उसे उठाकर बिठाते हुए बोले। दाद खूनख्वार नजरों से देखता, बाजू के दर्द से लब भींचे, सबको एक जोरदार मुक्का रसीद किए उनके पास बैठ गया। सब हैरान शुशदर दूल्हे को अपनी मेहंदी के संगीत में ऐसी हालत में देखने लगे जो लड़कियों से मुकाबले पर उतर आया था। आखिर वो मासूम था, क्या जाने। मेरा नाम दाऊद आलिफ अलवी है और मैं पैदा ही दाद वसूलने के लिए हुआ हूं, सो बी केयरफुल लेडीज। ढोलक संभालते वो सबको वार्न करने लगा। लड़कियां कहकहे लगाती हूं कर गईं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, आ जाओ भाई मैदान में। उनके चूड़ियों वाले डायलॉग पर लड़कों ने चौंक कर उनकी भरी भरी कलाइयों को देखा। ये खुद बेवकूफ हैं या हमें बना रही हैं? समीर ने अबरू उचका कर पूछा। ए निकल कमीने, तू तो पहले स्टेप पर ही हराएगा। उन चुड़ैलों की अदा है अलग अलग जालों में फंसाकर शहजादों को हराने की, नवीद ने चप्पत रसीद करते कहा। लड़कियां उनके ओवर कॉन्फिडेंस पर खिलखिला कर हंसी। रस्म शुरू हो चुकी थी। नूरुल ऐन के हाथों की हथेलियों पर दाऊद नाम की मेहंदी सजाई जा रही थी और वो पुरतपिश लौ देती नजरों से उसे देखता। अपनी किस्मत पर जितना नाज करता कम था। मेहंदी रंग की साड़ी जिस पर सुर्ख नफीस सी कढ़ाई का काम किया हुआ था, भारी बॉर्डर ने पांव के गिर्द घेरा डाला हुआ था। ज्वेलरी के नाम पर गले में गोल्ड पैंडेंट जो उसकी सुराहीदार गर्दन में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। कलाइयों में हम रंग सुर्ख मेहंदी रंग चूड़ियां, हील्स पहने वो लाइट मेकअप
लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए घर में दाखिल हुई। लाउंज का समा ही कुछ अलग था। शोर शराबे कह कहे आसमान को छू रहे थे। वो मेहंदी लगवाती झींकती बैठी नूर पर एक मुस्कुराती नजर डालकर अंदर घर की सिमत बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ती वो अपने रूम के पास आई और गहरा सांस भरकर दरवाजा खोला तो सामने ही आंखों पर बाजू टिकाए वो नीम दराज था। रूम में मलगजा सा अंधेरा था। वो मुस्कुराती उसे रफ हुलिये में देखकर अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाजा बंद किया। इस आहट और खुशबू पर बुरहान ने जरा सा आंखों से बाजू हटाया तो सामने ही पीठ पर बिखरे सुनहरी बालों को देखा जो उसकी कमर को छूने लगे थे। मुस्कान। वो झटके से उठ बैठा और जब मुस्कान ने रुख बदला तो वो कुछ ठिठका। मैं बता रही हूं, मैं शादी में जाऊंगी कुछ भी हो। आलिम के हाथ झटक कर वो रोती हुई बोली। ओके ओके चलेंगे, बस रोना बंद करो मेरा बच्चा, आओ यहाँ। वो कब से उसे चुप करवाने की कोशिश में था पर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। खाना तो वो जबरदस्ती खिला चुका था एक झिड़क पर, बाकी की वो खुद मालकिन थी। उसे उंगली पर घुमा रही थी। आप तो दूर ही रहें मुझसे, करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। उंगली उठाकर वार्न करती वो दुपट्टे से नाक साफ करने लगी। आलिम को काफी बुरा लगा। वो हमेशा उसके कोट पर नाक साफ करती थी और अब उसकी मौजूदगी में यूं नजरअंदाज करना काफी तकलीफ दे था। ऐन शहजादी, अपने आलिम से नाराज हो रही हो? आज तो मैं तुम्हें उस कहानी का सीजन 2 सुनाने वाला था। वो पुचकारते मोहब्बत पाश लहजे में बोला। उसके पास ही आ गया। नूर ने नफी में सहलाते ब्लैंकेट मुट्ठियों में भींचकर सिर के नीचे दबा दिया। नहीं, बस नहीं, आज आपसे हुरुल ऐन बात नहीं करेगी। आपने मुझे हर्ट किया है आलिम। मैं मेहंदी लगाने वाली थी, मैं तैयार होना चाहती थी, पर आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया बल्कि सुला दिया। वो उठकर उसके सीने पर मुक्के मारती चीखती वापस अंदर छुप गई। ओके, मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं अब खुद को हर्ट करूंगा। वो कहता हुआ बेड से उतरने लगा जब हूट ने झपट कर उसका बाजू थामा। क्या मतलब? मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था ना। वो हरासा हो गई। अपने मजाजी खुदा की तकलीफ का सोचते तो फिर तुम बात भी तो नहीं कर रही। क्या ये तकलीफ कम है मेरे लिए? वो भारी आवाज में बोला और उसका बाजू पकड़ा। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मैं इस सीजन 2 वालों को मार दूंगा। वो वार्न करता उसे बाजुओं में भरकर उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते सीने में भींच गया। पर वो क्या करता? डरता था उसे खोने से। अगर फिर कोई सरगोशी हुई उसके आसपास, फिर कोई बात बढ़ी तो क्या वो एक के बाद दूसरे अटैक पर जिंदा रह सकेगी? अगर कुछ चांस होते तो वो उसे जरूर ले जाता, पर डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि अगर अभी ही कोई ऐसी ही बात उसके आसपास की गई तो उसकी दिमाग की नब्ज फट सकती है। वो डर गया था। हाँ, सईद आलिम डर गया था, क्योंकि सालों पहले इन्हीं बातों ने उसके बाप को इंसान से हैवान बनाया था। इन्हीं बातों ने उसे एहसासे कमतरी का शिकार करते ड्रग्स लेने पर मजबूर किया था। वो फिर से कुछ ऐसा नहीं चाहता था। वो इन तलवार से तेज हथियार के आगे अपनी जान अजीज हस्ती नहीं रख सकता था, क्योंकि वो जानता था लोग पास नहीं आएंगे। वो हर नए तमाशे से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। आप इन्हें कैसे मार सकते हैं? वो तो अभी पैदा हुए हैं। हूर दुख और सदमे से बोली। ओह, अभी पैदा हुए हैं? वो ठहर ठहर कर बोलता सोच में चला गया कि इसकी बीवी को कैसे पता। वो उन पर क्या नजर रखती है, या इसके पेट में पड़ा फितना इसे वहां की रिपोर्ट्स देता रहता है। उसे ठिठकते देखकर वो मुस्कुराई और चेहरे पर लहराती लट को ऊपर की तरफ फूंक मारी। तुम यहां? बुरहान होश में आता झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके झिलमिलाते सरापे को देखा। वो आज जैसे दोनों शानें चित करने आई थी। वो अबरू उचका गया। क्यों? ये मेरा घर है, मैं यहां नहीं आ सकती? वो चलती हुई उसके सामने आई। बुरहान उसे सर से पांव तक देखने लगा, पर जल्दी ही उसकी नजरें बाजू पर थमी जहां सफेद पट्टी बंधी हुई थी। गालिबन तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी, वो चबा चबा कर बोला। शायद तुम भूल रहे हो स्वामी,
तुम ने ही कहा था कि मैं एक भूतनी हूं, और भूतनी कभी अपने जुनून को नहीं छोड़ती। वो अपने लंबे नाखून वाली उंगली उसकी गाल पर फेरते बुरहान को साकित कर गई। हाँ, शायद ये तुम्हें करना चाहिए, राइट? वो खिलखिलाती आईने के सामने आई और वहां रखती लिपस्टिक उठाकर अपने लबों पर लगाती मजीद लिपस्टिक को गहरा सुर्ख कर गई। साथ ही नेल पॉलिश उठाकर चेयर पर बैठती अपने नाखून पर लगाने लगी। वो तैश में चलता उसके पास आया और उसके हाथ से नेल पॉलिश छीन कर नीचे कालीन पर फेंकी। दूसरे ही पल उसका हाथ पकड़कर उठाया, खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। तुम्हें गोली लगी थी मुझे बचाते, वो उसकी आंखों में देखता बोला, जहां सुनहरी पन में सुर्खी कुछ मुनफरिद हुस्न बख्श रही थी उसे। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई? मैंने तुम्हें नहीं, अपने स्वामी को बचाया है। बोले तो अपना बिगड़ा एसपी। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले इस्तेहजाया हंसकर बोली, एसपी नहीं, एसएसपी। प्रमोशन हो रही है मेरी। उसने सबसे पहले ये बात उसे ही बताई और उसकी आंखों में झांक कर मुजरिम का कोई तासुर ढूंढना चाहा तो वो नाकाम हुआ। उसकी सोच के मुताबिक उसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास मजीद पावर्स आ गई थीं। वो एसपी से एसएसपी बन रहा था। इसके बाद उसका ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचेगा जब वो डीआईजी बनेगा। वो जो मुस्कान की आंखों में तासुरात देखना चाहता था बुरी तरह नाकाम हो गया था। तुम्हें मालूम है मिसिस बुरहान अलवी, तुम्हारी फाइल मेरे पास तैयार है। तुम जल्द ही सुलाखों के पीछे पाई जाओगी। वो उसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू डालकर उसे पास करता हंसकर बोला था। तो उसने लापरवाही से कहते फिजा में फूंक कर बबल फेंका जो उड़ता हुआ दीवार से चिपका। तो तुम्हें अपने लिए डरना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी कुछ दिन की है बस। वो जताकर अंगारे उगलने लगा। वो सुनकर मासूमियत से आंखें पटपटाकर हैरान हुई। स्वामी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बख्श दें एसएसपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं मर जाऊंगी, फलां फलां वगैरह। वो गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करती आखिर में बेजारियत से बोली, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि बेबस औरत कौन कौन से वास्ते देती है। वो तो कभी इन बेबसियों का शिकार नहीं हुई थी। वेल, अच्छी एक्टिंग थी। घूरने की बजाय इनाम दे सकते हो। वो उसकी घूरियां देखकर नजरें घुमाए बोली, अलबत्ता खड़ी अभी भी उसके हसार में थी। बुरहान ने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है हमारे मजाज कितने मुख्तलिफ हैं? तुम ठहरी 1000 कत्ल करने वाली एक बदतमीज गुंडी और मैं संजीदा बंदा। तुम्हें मालूम होगा, आफ्टर ऑल तुम जिस तरह की लड़की हो ये भी जानती होगी कि मैं पैदा किस वक्त पर हुआ था। ऑफ कोर्स स्वामी, 4:20 जून का महीना, 24 तारीख, संडे का दिन। तुम्हारे दादा दादी का काकी जी यानी सासू माँ के साथ हॉस्पिटल में, जबकि ससुर साहब ऑफिस में थे, जहां उन्हें 4:30 को खुशखबरी मिली थी कि बेटा हुआ है। ससुर साहब तुम्हारा नाम दाऊद आलिफ रखना चाहते थे, जबकि तुम्हारी दादी बुरहान, और दादा साहब बीवी की रजा में खुश थे। तो तुम्हें 4:50 को सबसे पहले दादी साहिबा ने चूम कर बुरहान नाम से पुकारा। इतना काफी है या मजीद सुनना चाहोगे? वो बुरहान को शुश्तर कर गई। कहां से जमा की मेरी इंफॉर्मेशन? कड़े तेवरों से वो सख्ती से चटक कर इस्तफसार करने लगा। कहां से क्या मतलब भई? दुनिया से बाहर नहीं गई थी। इंसान मुर्दे उखाड़ रहा है, मैं तो फिर भी अपने होने वाले स्वामी की इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ऑफिस के मेजर से हासिल की, कुछ जो वहां मौजूद थे, टाइम, बाकी की डिटेल हॉस्पिटल से मालूम की। वो उसकी कान में उंगली डालकर बोली। बुरहान ने गुस्से से सर झटका। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई उसके पर्सनल में इस कदर घुस गया था कि उसे भनक भी ना पड़ी। पड़ती भी कैसे? उसने अपनी जात पर कभी तवज्जो दी कहाँ थी?
اور ضرور وہ گن پوائنٹ پر حاصل کی ہوگی، کیوں؟ اس نے تلخی سے طنزیہ مسکرا کر دانت پیسے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک طرف گنڈی کہتے ہو، دوسری طرف اچھے کی امید رکھتے ہو، وہ کھلکھلائی۔ برہان کی نظریں اس کے لبوں سے ٹکرائیں۔ سفید چمکتے موتیوں جیسے دانت، بھرے بھرے پنکھڑیوں جیسے لپسٹک میں رنگے لب۔ وہ پل کو چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹا پایا۔ ہاں، میں کہاں تھا؟ وہ خود کو سرزنش کرتا ہوش کی دنیا میں داخل ہوتے بولا۔ مسکان نے آنکھیں جھپکائیں۔ تم یہاں تھے، اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے بتایا۔ برہان کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا تو کبھی اس کے لبوں کو۔ دوسرے ہی پل وہ اس پر جھکا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کی بے رحمی پر وہ مچل اٹھی۔ جب وہ نڈھال ہوئی تو وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ مجھے بھی معلوم تھا، میں یہیں رکا ہوا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا پرفیوم بہت خوبصورت خوشبو والا ہے، وہ بوجھل آواز میں کہنے لگا۔ تمہارے بال بے حد خوبصورت ہیں، سنہری جیسے سونے کے۔ وہ اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائے، اپنی انگلیوں پر اس کے بال دیکھتے مسکرا کر بولا۔ تمہاری ببل کھانے والی ادا، تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا غرور، سب منفرد ہیں۔ تمہاری یہ دودھیا رنگت۔ وہ نچلا لب دبائے اس کے تنگ حصار میں آنکھیں موندے کھڑی، گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ عجیب احساس اس کی رگ و روح میں اترنے لگا کہ وہ خاموشی سے اس کے سحر انگیز حصار میں جکڑی کھڑی کوئی احتجاج، کوئی مزاحمت، غصہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر ان پلوں کو قید کرتا، اس پر حصار تنگ کر کے بے باک ہو کر جسارتوں گستاخیوں پر اتر آیا کہ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ پر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں تمہیں مزید اس رشتے میں قید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا جب تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں پہناؤں تو تم پر اپنا نام پاؤں۔ پر اس کے باوجود اگر تم میری رہنا چاہتی ہو، مجھے چاہتی ہو، اپنے جنون کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہتی ہو، تو ایک کام کرو، برہان الوی خود کو لکھ کر تمہارے نام کر دے گا۔ وہ اس کے کان کو لبوں سے چھوتا سرگوشی میں کہہ رہا تھا کہ مسکان کی بند آنکھیں پہلے ناسمجھی سے کھلی، پھر حیرت سے پھیلی، اس کے بعد ان میں قہر سا اتر آیا۔ کون سا کام؟ وہ ضبط کرتی بولی۔ گواہی دو، اپنے آپ کو میرے لیے چھوڑ کر سعید عالم اور اس کے ان دو چمچوں کے خلاف۔ پرامس کروں گا ان کے جیل کی سلاخوں میں بھیجنے پر میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا۔ تم خود کو کاٹ کر میرے پیروں میں رکھ دو برہان الوی، پر تمہارا یہ خواب قطعاً پورا نہیں ہوگا۔ وہ جھٹکے سے مڑ کر اسے پیچھے دھکا دیتی گرائی۔ پل میں ایسا لگا تھا وہ کمزور ہو گئی ہے، اپنے جنون کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرے گی اس گھٹیا حرکت پر اس وقت سیر کی باتیں دماغ میں آ گئی تھی کہ غصے میں کیا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو وہ کیسے اس انسان کی باتوں سے مڑ کر وہ کام کرتی، اپنے پیارے اللہ کے ساتھ اپنے محسن، اپنے بھائی باپ کو ناراض کرتی۔ تبھی دوسرے پل اے سی کی فضا میں گہرا سانس بھرتی اپنا حلیہ سنوار کر نارمل ہوئی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ بی ریڈی بیبی، تمہاری فائل تو بالکل مکمل ہے میرے پاس، پروف سمیت۔ مسی جان، 3 دنوں میں تمہیں لاک اپ میں بند کروں گا۔ تمہیں یعنی مسکان عارف کو، وہ کہکہا لگا کر ہنستا ہوا بولا۔ تمہیں پتا ہے SSP، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم میرے یعنی مسی کا جنون ہو۔ اگر نہیں ہوتے تو کل شادی کی بجائے میت نکلتی، وہ بھی تمہاری۔ وہ ناپسندیدگی سے دیکھتی بولی۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، تم میرے پاس آؤ گی اگر مجھے چاہتی ہو، یا انہیں؟ اگر انہیں تو ابھی اسی وقت نکلو میرے گھر سے، میں اسی وقت تمہیں طلاق۔ برہان،
खबरदार मेरे लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जान से मार दूंगी, समझे? पास रखा टेबल से लैपटॉप उठाकर दीवार पर मारती वो धाड़ी थी उस पर एक बात याद रखो, ना तुम्हें अब मुस्कान मिलेगी ना ही सईद आलिम, बिकॉज यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा अपन की असमत से। मैं तेरे पास आई इज्जत से, पर तुझे वो रास नहीं एसपी। करो अपनी ड्यूटी, अपन देखती है किस हद तक तुम मिसी को पकड़ सकते हो, वो कहती झटके से वहां से मुड़ी। तुम्हें मालूम है हमारे माह के रिश्ते में नाकामी किसने की? उसके रिलैक्स अंदाज में कहने पर मुस्कान जाती हुई थमी और सुर्ख आंखों को मींच लिया। आरिफ, तुम सही कह रहे थे, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वो सोच कर लब दबा गई। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा गुरूर तकब्बुर तुम्हें ले डूबा मुस्कान। अगर फिर कभी अपने सो कॉल्ड जुनून से तंग आकर मेरी तरफ बढ़ो तो सर झुका कर आना, क्योंकि मुझे वही लड़की पसंद है, ना कि तुम। वो इतनी बेरहमी से काटने लगा कि मुस्कान को लगा इतनी बेरहमी से उसने भी किसी को नहीं काटा। हा हा हा, तुम्हें क्या लगा बुरहान अलवी कि मुस्कान उन लड़कियों में से है जो फिर लौट कर तुम्हारे पास आएंगी? इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं। मुस्कान सिर्फ एक बार आती है जिंदगी में, या तो हंसाने के लिए या रुलाने के लिए, और आई एम श्योर एसपी तुम जरूर उस मुस्कान को याद करोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। रही बात हमारे मसाज बिल्कुल भी ना मिलते हो, पर याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो। अगर जिंदगी में किसी के बारे में सोचा तो उस दिन अपनी लाश पर किसी को रोते नहीं पाओगे, बल्कि मैं तुम्हारा वजूद तुम्हें भी देखने नहीं दूंगी। वो कहकर रुकी नहीं, टिक टिक करती हील्स की आखिरी आवाज छोड़ती नमी उस सोने जैसी आंखों में लेकर वहां से सीढ़ियां उतरी। मम्मा, फेरी के अचानक उस पर नजर पड़ने से बुलंद चीख मारती भागती सीढ़ियां चढ़कर उसकी टांगों से लिपट गई। मुस्कान को लगा उसका दिल फट जाएगा कि वो शिकस्त ना खाने वाली लड़की, लगता था उस बेरहम की बेरहमी पर अपना वजूद हार गई है। मम्मा, आप कहाँ थी? कल से मैंने आपको कितना याद किया। फेरी उसके बात ना करने पर रो पड़ी और सर ऊंचा करके उसे देखा। अभी वो झुक कर उसे उठाती कि उसी पल उससे पहले ही पास से नमूदार होते वजूद ने उसे उठा लिया। बेटा, मम्मा को अभी बहुत काम है, इसीलिए उन्हें जाना है। बुरहान उसके आंसू बोसों पर चुनता हुआ बोला। फेरी मुस्कान की साकित आंखें सामने देखकर सिसक उठी। वही लाउंज में जहां उसकी हालत पर आलिफ गैजो गजब में मुट्ठियां भींच गया था, वहीं सब पर सन्नाटा छाया हुआ था। सबको जैसे सांप सूंघ गया, सब हरासा उसे देखने लगे। घबराने की बात नहीं, ये जाने के लिए ही आई थी, क्यों मिसी डार्लिंग? बुरहान ने सबसे कहते आखिर में उसकी हालत का जैसे मजाक बनाया। वही तो हुआ था उसके साथ जब वो ऑफिस में था और वो उसे बुरी तरह शिकस्त दे गई थी। हाँ, जा रही हूं, डोंट वरी यार। मैं कोई चुड़ैल हूं जो ऐसे डर रहे हो मुझसे? वो मेरा सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, सो बी रिलैक्स। और रही बात आपकी एसएसपी साहब, कभी किसी रात जब दिल करे और खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो रात के 12 बजे वही बबल जरूर लेकर खाना जो मैं खाती हूँ। चलती हूँ, इजाजत दीजिएगा। आंख दबाकर कहती वो झुक कर फेरी के गाल पर एक किस करके वहां से पलटी। अच्छा सुनो, तलाक के पेपर्स जेल में साइन करोगी या फांसी के वक्त? इस्तेज़ाया हंसते हुए उसने पूछा। दम है तो कभी पकड़ कर दिखाना, तब मानूंगी कि तुम एसएसपी हो। सर्द लहजे में कहती वो मुस्कान से यकसर बदली हुई थी। जरा सी गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से दोनों को देखती आंख दबाकर वहां से निकलती चली गई। पर जाते हुए एक नजर फतहमंदी से मुस्कुराती आसिया बेगम के चेहरे को देखना नहीं भूली। वहीं नूरुल ऐन का सफेद पड़ता चेहरा भी नजरों में आया, पर उसने किसी पर तवज्जो नहीं दी। गाड़ी में बैठते ही उसने एक गहरा सांस लिया और मुड़कर
اس گھر پر آخری نظر ڈالتے لب بھینچ کر ضبط سے سرخ آنکھوں پر سیاہ گلاسز پہنے اور گاڑی سٹارٹ کرتی زندگی کا تجربہ یاد کرتی ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی۔ گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے نکلی۔ پیچھے فیری کو تھامے کھڑا برہان سر جھٹک گیا۔ پلٹنے پر اس نے سامنے کھڑا سرخ آنکھوں سے تعصب بھری نظروں سے دیکھتے آلف کو پایا۔ وہ اسے گھور کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ بھائی اچھا نہیں کیا آپ نے، اس نے دکھ سے کہا۔ میں نے سوچا تھا آپ کا ظرف ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، آپ میرے آئیڈیل مین ہیں، پر مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سوچا کیسے۔ اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ تم کچھ نہیں جانتے داد، اس سب سے دور رہو۔ میں نے اس سے شادی ہی 1 ماہ کے لیے کی تھی اور وہ 1 ماہ ختم، آج تو یہ رشتہ بھی ختم۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، روتی ہوئی فیری کو حصار میں لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم کہاں؟ نور کو اٹھتے دیکھ کر آسیہ بیگم نے گھورا۔ وہ بوکھلا گئی۔ وہ برہان بھائی سے پوچھنے کی مسکان۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ چپ کر کے بیٹھو نور، تماشا مت لگاؤ۔ اچھا ہوا نکلی، میں برہان کی اب دھوم دھام سے شادی کرواؤں گی۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ کس سے؟ اس نے خوف سے پوچھا۔ آسیہ بیگم اس کا گال سہلا کر بولی، شیری سے۔ بہت محبت کرتی ہے برہان سے وہ بھی، ابھی سے نہیں، شروع دن سے۔ اس لیے ہی وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود یوں اس پولیس کی نوکری کے دھکے کھا رہی ہے۔ یہ پاگل تھا اس اندھی، میرا مطلب کہ حور العین کے لیے۔ اسے شیری کی محبت کبھی دکھائی ہی نہیں دی۔ میں تو پہلے دونوں کی شادی کر دینا چاہتی تھی کہ اچانک وہ اس فحاشا کو بیا لے آیا۔ پر اب اس کی ایک نہیں سنوں گی، شادی تو اس کی شیری سے ہوگی، وہ بھی اتنی بڑی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سرگوشیوں میں نور کو بتا رہی تھیں جس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مسکان کہاں گئی ہوگی؟ اس کے دماغ میں صرف یہی سوال گھوم رہا تھا۔ سکتا ٹوٹا، سب پھر سے جوش و خروش میں آ گئے۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا اور پھر آخر اختتام کو پہنچا۔ اسے روم میں پہنچا دیا گیا۔ داد جو گیا لوٹ کر نہیں آیا، جبکہ نور مسکراتی گہری نیند لینے اس روم میں آخری رات سو گئی۔ مجھے کہانی ابھی نہیں سننی، آپ مجھے امچل نمکی کھلا دیں، وہ اس کی شرٹ پر ناک رگڑے بولی۔ ابھی؟ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابھی سے کیا مطلب آپ کا؟ نہیں کھلانی تو صاف کہیں، یہ آپ وقت کا احساس دلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے گستاخ لہجے میں بولی۔ شش، ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے۔ عالم نے فوراً ٹوکا اور حور العین ہوں کرتی رہ گئی۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو آسان ہے دور ہو کر بیٹھ جائیں مجھ سے۔ ڈبڈبائی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ بولی، البتہ اس کا بازو بھی تھاما ہوا تھا جیسے ابھی نکل کر چلا جائے گا۔ وہ بغیر چینج کیے بیٹھا ہوا تھا اور حور العین کسی ننھی بچی کی طرح اس کی گود میں سرخ شرمندہ سی۔ وہ نکلنا چاہتی تھی پر اپنے سامنے اس کے بازوؤں کا حصار اسے ایسا کرنے کی جرأت نہیں بخش رہا تھا۔ تم بدتمیزی سے بات کر رہی ہو میرا بچہ، ایسا نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے تم غصہ ہو، پر غصے میں بھی خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کام ہم سے انجام ہو جاتے ہیں جن کا ہم ہوش و حواس میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور میں چاہتا ہوں میری پیاری سی شہزادی اپنے تمام جذبات پر قابض ہو تاکہ زندگی کا کوئی بھی موڑ اسے کمزور نہ کر سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کے کھلے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا انہیں سنوارتا کہہ رہا تھا، جبکہ حور العین مبہوت سی اس کے لہجے کی نرماہٹ، محبت، شفقت ان سب میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ انداز تخاطب تو اس کے باپ کا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی ٹھہر کر اپنے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے تھے کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا۔ ہاں، جب وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا فیل کرتی تھی تنہائی میں تو اکثر اس پر مایوسی کے دورے پڑتے تھے، اور تب اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیسے بھنک پڑ جاتی کہ وہ فوراً اسے اپنے حصار میں لے کر ایسے ہی سمجھاتے تھے کہ اللہ اس کے لیے
بہتر سے بہترین سوچتا ہے۔ باپ کی باتیں یاد آئیں تو وہ سسک اٹھی۔ عالم، میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنی جلدی انہیں مجھ سے چھین لیا اور میں کچھ نہیں کر سکی ان کے لیے۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب ہوگی عالم، جس نے اپنی جنت کا دیدار۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی عالم نے اسے اپنے سینے میں چھپا دیا۔ بد نصیب نہیں کہتے، وہ ٹوک کر بولا۔ روتے نہیں، اگر بہت زیادہ یاد آتی ہے تو میں صبح تمہیں صورتیں پڑھاؤں گا، وہ پڑھ کر ان کے لیے دعا مغفرت کر دینا میری طرح۔ اس کے سر کا بوسہ لیتا سائڈ ٹیبل پہ بجتا موبائل اٹھانے لگا۔ آپ کی طرح؟ حور آنکھیں صاف کر کے سر اٹھا کر جیسے اسے دیکھنے لگی، اور یہ ادا اس کی اس قدر حسین تھی کہ عالم مبہوت سا رہ جاتا تھا۔ میری طرح، کیونکہ مجھے بھی تو میری ماں کی یاد آتی ہے، اس کا گال سہلاتے وہ بولا، اور عارف کی کال دیکھنے لگا۔ آپ کی ماں کو کیا ہوا عالم؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ کی مما پاپا کہاں ہیں؟ اور سمی وہاں کیسے پہنچی تھی؟ وہ تو وہاں پاگل تھی نا، پھر کیسے؟ مطلب ماضی کو یاد کر کے اس کی زبان خود ہی لڑکھڑانے لگی۔ کچھ باتیں راز میں اچھی لگتی ہیں شہزادی، انہیں یاد کر کے صرف تکلیف ملتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے بھیگے چہرے کے بوسے لینے لگا۔ حور العین سٹ پٹا کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آپ تو بس شروع ہو جائیں، جھیمپی آواز میں کہتی اس کے سینے پر چٹکیاں بھرنے لگی۔ اچھا، میں شروع ہو جاتا ہوں؟ وہ اس کی بات سے محسوس ہوا تھا، تبھی ہنس کر پوچھا۔ پر حور العین کی تو ساری توجہ اس کے سینے پر پتھر جیسی جسامت پر چٹکیاں بھرنے میں مصروف ہوتی۔ آپ کیا کھاتے ہیں عالم؟ اتنے موٹے کیوں ہیں؟ اور یہ آپ کا گوشت ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بری طرح جھنجھلا کر وہ اپنی کلائیوں پر چٹکیاں بھرتی اس کی چوڑی کلائی کو پکڑے اس پر کاٹنے لگی، اور اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتا وہ عارف کو کال بیک کرنے لگا۔ عالم، مسکان یہاں سے چلی گئی، عارف کی پریشان آواز آئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر روم میں آئے تھے اور اسے چیک کرنے پر مسکان کی جگہ عارف کو آکسیجن ماسک میں سانسیں لیتے دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ عارف کی حالت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے کھولا، تب وہ بھڑکا، ماسک دور پھینک کر اٹھا اور سیدھا عالم کو کال کی۔ عالم سمجھ گیا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے۔ رہی بات اس کے علاج کی تو مجھے یقین ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں دے گی۔ اس کی بات سن کر سمجھتے عارف قدرے نرم پڑ گیا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آتا ہوں۔ عارف نے گہرا سانس لیا اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سر، آپ کی بہن کہاں گئی؟ ڈاکٹر پیچھے آتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ عارف نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم، آج اماوس کی رات ہے، اسی لیے وہ چلی گئی اپنے سپیرے کے پاس۔ وہ حیران ہوتا بتانے لگا۔ پر آج تو منگل کی رات ہے، ڈاکٹر الجھ کر بولا۔ کیونکہ آپ زیادہ پڑ گئے ہیں اسی لیے، کندھے اچکا کر بولتا وہ ڈاکٹر کو جزبز کر گیا۔ اس کی ہونکوں والی شکل پر عارف نے بمشکل ہنسی دبائی۔ موبائل رکھتے عالم نے چونک کر اس کے سر کو دیکھا جو اب دانتوں سے کاٹنے کی کوشش میں تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو عین؟ اسے مسلسل کوشش میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ میں یہاں کاٹنا چاہتی ہوں، پر منہ میں نہیں آ رہا نا، نہ ہی چٹکیوں میں۔ یہ کیا ہے عالم؟ کیا لگایا ہے؟ اس نے غصے سے سرخ چہرے سے تپ کر کہا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا لگا اٹھا۔ یہ تمہارے منہ میں نہیں آئے گا، ایسا کرو میرے گال پر کاٹو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی مائی بیچ۔ اس کا منہ پکڑ کر کہتے اپنے گال پر اس کے لب رکھے حور بوکھلا گئی۔ نہیں، یہاں نہیں۔ وہ سرخ سی نفی کرنے لگی۔ عین، میں نہیں چاہتا تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہے، ٹرائی کرو، ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا۔ اس نے سرزنش کرتے پر محبت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو تکلیف ہوگی پھر۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔
आलिम उसकी हेर फेर करती आंखों में देखकर जी उठा। अपनी विच के लिए हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं, ये कभी मत भूलना, उसने कहते ही झुक कर फिर अपने गाल को उसके मुंह पर रखा। ये ख्वाहिश सिर्फ उसकी नहीं, आलिम की भी बन गई थी। तभी उसने मुंह खोलकर उसके गाल पर दांत गाड़ दिए, कुछ तेज। उसकी नरम पकड़ देखकर वो सरगोशी में बोला। हूर ने झिझकते फौरी अमल किया। कुछ मजीद, उसकी गर्दन में उंगलियां डालते हुए कहा। हूर ने हंसते हुए मजा आते फिर पकड़ सख्त की, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी भूरी कुछ बड़ी हुई शेव नरमी से नोच रहा था। सईद ने लबों में मुस्कुराहट दबाए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और फ्रंट कैमरा ऑन करके इस खूबसूरत चुड़ैल को अपने गाल को काटने वाले मंजर को मोबाइल में हंसते हुए कैद कर दिया। उसका इरादा ये फ्यूचर में अपनी बीवी को दिखाने का था, उसके कारनामे। तुम में तो ताकत नहीं है, अभी तुम मेरे सीने में काटने लगी थी, वहां ताकत चाहिए। वो हंसता हुआ बोला कि हूर को सरासर अपना मजाक लगा। आपने मुझे अभी देखा कहाँ है, अब देखें। मैं तो आप पर रहम कर रही थी कि ज्यादा लग गई तो, पर अब देखें। आलिम की ललकार पर वो जज्बाती होती बोली। अच्छा। वो हंसा और खुद को उसके करीब किया। हूर को मजीद पतंगे लग गए और उसने पूरी कुव्वत से उसके गाल पर दांत जमाए कि आलिम कह कहाँ लगा उठा और ऐसे ही खड़ा होता कद आवर आईने के सामने आया। अब देखा? वो खुश होती उंगली उसके गाल पर फेरती हुई खिलखिलाई। आलिम ने हंसते अपने गाल पर सुर्ख दांतों के निशान पर जज्बे लुटाती नजरें डालकर उसकी नाक से नाक रगड़ी। चलो, इस खुशी में आज तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा तीखी, एक्स्ट्रा खट्टी, मुनासिब नमक वाली एक्स्ट्रा अमचल नमकी खिलाऊं। वो उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर अपनी शर्ट के बटन बंद करता, आस्तीन फोल्ड करके उसे अपने हसार में लिया और रूम से निकला तो सब सोए हुए थे। मैंने सिमी से कहा अमचल नमकी का, तो वो हंसने लगी कि ये क्या बला है। अब आप बताएं आलिम, ये बला है बला? वो काउंटर पर उसके सामने बैठी पाउंड झुलाकर बोली। सिमी ने कभी देखी नहीं ये डिश, इसीलिए कह रही है। तुम सैड मत हो, मैं उन्हें दिखा दूंगा। हाँ, ये सही है। वो सर हिला गई। आलिम एप्रन बांधता मतलूबा चीजें निकालने लगा फ्रिज से। सबसे पहले सुर्ख मिर्च का पेस्ट उठाया और फिर इमली का। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाता बीच बीच में उससे बातें भी कर रहा था, बल्कि उसे ज्यादा बातें बताने पर उकसा रहा था। आपको मालूम है आलिम, मैंने रात को जिन देखा। अचानक वो बोली। आलिम पल को रुका और फिर हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? वो दिलचस्पी से पूछता इमली के गाढ़े पेस्ट से उंगली भरकर उसके लबों पर फेरी। उसने जैसे ही जबान फेरी सटपटा गई। होना क्या था? वो मुझसे इजहार करने आया था, पर पास आपको सोया देखकर भाग गया। वो कहती दोनों हाथों की ताली बजाते खिलखिलाई। भाग क्यों गया? वो सरसरी सा पूछता दिमाग में उस जिन को जलाने का मंसूबा बना रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसने देखा इतनी हसीन, इतनी प्यारी परी देव की कैद में सोई हुई है। वो भाग गया। वो अपनी बेमकसद बेबुनियाद बातों पर खुद ही कह लगा रही थी। आलिम समझता सर हिला गया और चमचा भर कर फूंकते उसके पास आकर उसके लबों से लगाया। हूर ने मुंह में लेते ही हलक से उतारा। दिल में गुदगुदी सी होने लगी खाकर। आलिम गौर से उसके तासुरात चेक कर रहा था और ये देखकर सुकून का सांस लिया कि उसने कोई नापसंदीदगी वाला तासुर नहीं दिया। आलिम, रूम में चले, वहीं खाएं। वो उतर कर बोली। उसे क्या इख्तलाफ हो सकता था, सर हिला दिया। वो लाउंज से गुजरा कि वहां जग पकड़े निकलती रिमशा को देखा। वो इन दोनों को देखकर फिर आलिम के हाथ में ट्रे देखती सर झुका गई। क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? वो उससे मुखातिब हुआ। रिमशा चौंक गई। मैं तुमसे हूं, क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? वो कुछ रोब से बोला। रिमशा ने फौरन सर अस्बात में हिला।
मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ, मेरी बीवी के दोनों हाथों पर लगाओ। वो हुरुल ऐन की जानिब इशारा देता बोला। अभी? पर मेहंदी? वो इस पागल इंसान की बात पर शुष्तर थी। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं मंगवा लेता हूँ। ये ना आइसक्रीम वाला पिछले आधे घंटे से नहीं जा रहा। अब ऐसे करो बर्दाश्त, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अभी रात का 1 बजा है, कहीं से मिल जाएगी, तुम माइंड सेट करो अपना। इसे बहुत प्यारी मेहंदी लगानी है। वो बावर करवाकर हुरुल ऐन को लेता अंदर की सिमत बढ़ गया और फिर हकीकत में ही कुछ देर में एक आदमी हाथ में मुख्तलिफ मेहंदियों को शॉपर में लिए खड़ा था। रिमशा ने दुपट्टे से चेहरा साफ करते सर हिलाया कि इससे ज्यादा पागल इंसान कोई नहीं हो सकता। रात के 1 बजे बीवी को मेहंदी लगवा रहा है और वो नवाबजादी खुशी से खिलखिलाती उससे चिपकी हुई थी। अच्छा लगा ना? कुछ देर में वो हुरुल ऐन को लेकर लाउंज में आया जहां आदमी मुअद्दब खड़ा था। उसे जाने का इशारा देते वो रिमोट लेकर बैठा और उसके पास हुरुल ऐन को बिठाया जो काफी पुरजोश लग रही थी मेहंदी लगाने के लिए। आलिम बावर करवाकर एलईडी की जानिब मतवज्जा हो गया जब तक वो फ्री हो जाए। हूर का दिल किया अब इस खुशी में वो उसके दोनों गाल दांतों से खा ले। वो बता नहीं सकती थी कितनी खुश थी कि काश इस पल मीसनी होती, उसे मेहंदी लगाते देखकर वो काफी खुश होती और शायद खुद ही लगा देती उसे मेहंदी। आरिफ की आंख मुसलसल कॉल की रिंग पर खुली। अभी 4 बज रहे थे। वो तहज्जुद कुछ देर पहले पढ़कर सोया था, पर आलिफ की कॉल देखकर वो चौंका और संभल कर बैठते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ आलिफ मुस्कान के बारे में पूछ रहा था। वो तुम्हारे घर है? खैरियत? कोई परेशानी तो नहीं? आरिफ ने परेशानी से इस्तफसार किया। पर यहां से तो जा चुकी थी रात को ही। क्या? वहां नहीं? ये क्या बकवास है आलिफ, वो वहीं आई है। उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो बगैर स्लीपर पहने रूम से बाहर निकला और मिसी के रूम की तरफ भागा। मुस्कान के रूम को खाली देखकर उसकी आंखों में कहर उतर आया। वो गैज़ो गजब में गरजा। क्या तुम्हारे भाई ने उसे कुछ कहा है? उसके लहजों में शोले जैसी लपक थी। आलिफ गहरा सांस भरते कनपटी दबाने लगा। उसके भाई की मुस्कान से शादी होने पर उसने सोचा था, इस टूटी बिखरी लड़की जो अपनी शख्सियत, अपना आप भूल कर लोगों से खाइफ, उनकी नजरों की हवस से डर कर हथियार उठाने वाली को उसका भाई तहफ़्फ़ुज़, मान, एतमाद देगा। वो गुंडी से एक प्यारी सी मासूम लड़की बन जाएगी। पर उसके भाई ने उसकी सारी सोचें गलत साबित कर दी। वो एक अक्लमंद, संजीदा शख्स था, समझ सकता था, मुस्कान को संभाल सकता था। जिस तरह आलिम ने ऐन से जबरदस्ती शादी करके भी उसे खुद में समेटने के साथ अपनी शख्सियत का असीर बना डाला, उसका भाई भी कर सकता था। एक तरफ उसका भाई गलत था, उसने रिश्ता बनाया था तो उसे निभाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ वो गलत भी नहीं था, अपनी जगह सही था। बुरहान अलवी को जुर्म से सख्त नफरत थी और फिर एक ऐसे वजूद का जिंदगी में आना जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ ये जानता था कि वो लोगों को मारते हैं, जान से कत्ल करते हैं, उन्हें बुरी तरह दरिंदगी का शिकार बनाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, उसकी बंदिश तोड़ते हैं। यहाँ उसका ये अमल आम था। दोनों तरफ से ला ताल्लुकी थी, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मिसी पाबंद थी जब तक किंग पकड़ा नहीं जाता अपनी जात के बारे में खुद से भी सरगोशी नहीं करनी। ये ना सिर्फ आलिम बल्कि ऊपर से अहकाम थे। पर उसने सैर आलिम के हुक्म को जिंदगी में पहली बार ना मानते बुरहान अलवी को बता दिया कि वो मिसी लेडी बॉस है। बुरहान चाहे ना समझता हो पर आलिफ अलवी समझता था, क्योंकि उसे भी तो मोहब्बत थी और मोहब्बत की खुशबू तो वो हजारों में पहचान जाता था। उसने उस दिन मिसी के लापरवाह अंदाज में अपने रूप के बारे में जिक्र करते उसके लहजे में आंच पाई थी जज्बों की। इस लापरवाही में उसने अपने आप को उस पर आश्कार कर दिया था कि वो मिसी है, मतलब वो उससे मुखलिस होना चाहती थी। काश दोनों एक दूसरे को समझते। कसूर दोनों का नहीं था। जिस रिश्ते में मान, इज्जत, मोहब्बत एक तरफा शक की आंच पाई जाए, वो रिश्ते कभी पायदार नहीं होते, कभी अपनी खुशबू नहीं फैलाते, बल्कि उस फूल की तरह 2 दिन खिलकर तीसरे दिन मुरझा जाते हैं। इन्हें टूटना ही था। अब देखना ये था कि कैसे बुरहान अलवी मुस्कान को पाता है और मुस्कान कैसे उसका दिल जीतती है।
सोच कर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आलिफ, अगर मेरी बहन को हर्ट किया होगा ना तुम्हारे भाई ने, तो तुम मुझसे कोई शिकवा नहीं करोगे, माइंड इट। गाड़ी में बैठते वो धाड़ा था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है इज़ल। उसने उसे ठंडा करना चाहा। आरिफ सुर्ख रंगत से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सोचकर ही उसका जबड़ा तन गया। दुआ करो आलिफ, सब ठीक हो। मेरी बहन ने शादी के लिए नहीं कहा था उसे, वो खुद आया था उसके पीछे। अब अगर उसने जरा सी उसे तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हस्ती मिटा दूंगा एसपी की। गाड़ी वहां से निकालते वो उससे बर्फीले लहजे में कहता मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक गया। आलिम को इसीलिए नहीं बताया था कि अगर वो जान जाता तो फिर आलिफ को शिकवा होता, और अगर उसकी बहन उसे किसी दुख में मिली तो वो आलिम को आगाह करने से पहले ही बुरहान को मिटा देगा। साहिल का मौसम रात के तीसरे पहर काफी यख था। चांद की सुनहरी रोशनी पूरे आसमान पर फैली हुई थी। ऐसे में ठंडी ठंडी हवाएं समुंदर की लहरों से टकराकर उसके वजूद से टकरा जाती। आबोताब से चमकते चांद की सुनहरी लहरें उसे बालों से टकराती, उन्हें मजीद सोने जैसा बना देती। कोई उदास अप्सरा रात के इस पहर समुंदर के किनारे तन्हा बैठी थी। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, सोने जैसे। भारी गंभीर सरगोशी उसके कानों में गूंजी। आंसू लड़ियों की सूरत बहते, गालों पर कांच के टुकड़ों की सूरत बिखर जाते। मैं वाकई बहुत बुरी हूं बुरहान अलवी। मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक कोठे वाली की बेटी हूं, जो तमीज, इज्जत के दायरे, एहसास से नावाकिफ है। मैंने खुशी से तो इन हथियारों को नहीं उठाया था स्वामी। तुम आते, मुझे यकीन दिलाते कि मैं कोठे की हूं जरूर, पर मैं हवस के लिए नहीं, इज्जत के लिए बनी हूं, तो मैं कभी ऐसी ना बनती। तुम मुझे ये यकीन दिलाते कि मैं एक माह के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बीवी बनने के लायक हूं, तो मैं कभी ऐसी ना होती। तुम मुझसे पूछते कि मुस्कान, तुम्हारे लबों की मुस्कान सच है या सिर्फ एक फरेब, तब भी मैं ऐसी ना होती बुरहान। तुम मेरा कभी मोहब्बत से हाथ थामते तो मुझे अपना हमसफर पाते। कभी मुझसे हथियार लेकर कहते कि मैं हूं, तो मैं अपना आप तुम पर फना कर देती। पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी एसपी। तुम्हें कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने आपसे तुम तक का सफर क्यों पलों में तय कर लिया, क्यों मैंने आपसे सफर शुरू किया और तुम पर इख्तिताम किया। वो सिसक उठी, क्योंकि एसपी तुमने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरा सौदा किया था। तुमने बीवी लफ्ज अपने साथ जोड़ने के लिए खरीदा, मुझसे अपनी पहचान का सौदा किया। मुझे बीवी नहीं बनाया, अपने मतलब का शो पीस बनाकर ले गए, अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए मेरी जात का तमाशा लगाया। अभी किस लिहाज से ये मुस्कान तुम्हारी इज्जत करे? क्या मैं इज्जत के लायक नहीं अल्लाह? भीगी सरगोशियों में वो चांद से नजरें हटाकर अब आसमान को देखती पूछने लगी। मैंने दुनिया के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया, मैंने तो बस आपको अपनी कमजोरियां सुनाई कि मैं उससे इश्क करती हूँ। मैंने उसे कहा था वो मेरा जुनून है, पर आपको तो सब मालूम है वो मेरा इश्क है। क्या ये काफी नहीं कि आप जानते हैं मैं कमजोर हूं? क्या ये काफी नहीं मेरी जात बेनिशान है, इन बिखरे कांच के टुकड़ों जैसी, जिन्हें समेटने में जख्म मिलते हैं, तकलीफ होती है। मेरे लिए तो यही काफी था कि आप मुझे जानते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था खुद को बयान करने के लिए बिखरना पड़ेगा। आपको तो मालूम है मैं सिर्फ आपके सामने बिखरती हूं, तो कैसे हो जाऊं बेमोल, जरा बताएं। वो सिसकियों में अपना दुख दर्द बयान करती फूट फूट कर रोती घुटनों में मुंह छुपा गई। मैं चली जाऊंगी उसकी जिंदगी से, क्योंकि मैं अपनी माँ की कही बात सच साबित नहीं करना चाहती, उन्हें सच्चा नहीं बनाना चाहती कि वो सही थी, कि मैं निकाह के काबिल नहीं। सच में आज एसपी ने मुझे निकाह के काबिल नहीं समझा। मेरा भरम कायम रखना मेरे मौला। मेरी माँ को कभी मत बताना कि मुस्कान तलाक लेते लेते बची है। उस पर यही आश्कार करना कि वो एक इज्जतदार, ईमानदार पुलिस वाले की बीवी है और हमेशा रहेगी। पर मैं झुकूंगी नहीं। दुनिया भले ही मुझे कसूरवार समझे, मैं नहीं झुकूंगी, क्योंकि जब एसपी नहीं था तब मुस्कान को मिसी ने सहारा दिया था, और मैं इस मिसी को नहीं मार सकती, क्योंकि वो सिर्फ खुद की नहीं, काफियों की आस है, उन बहती तड़पती आंखों की उम्मीद। वो रोती अपने अंदर का गुबार हमेशा की तरह समुंदर, चांद, हवा की मौजूदगी में निकालती अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ मुस्कुराई।
तुम मेरा इश्क हो, मजबूरी नहीं बुरहान अलवी। तुम ला हासिल भी रहोगे तो इश्क कहलाओगे, अगर खुद से मुकर गई तो बेवजूद बेरूह कहलाऊंगी। बेंच पर रखे अपने कोट से बबल निकालती, रैपर से आज़ाद करवाकर मुंह में डालती, कुछ देर बाद बेफिक्री से आसपास के मनाजिर को देख रही थी। दूर दूर तक समुंदर की लहरें फैली हुई थीं। मुस्कान? आरिफ को यकीन था वो उसे यहीं मिलेगी, तभी गाड़ी का पहला रुख साहिल समुंदर की तरफ ही किया था और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उसे यहाँ मिली थी। वही मुस्कान उसकी आवाज़ पर चौंकी और जल्दी से चेहरा हाथों से साफ करती मुस्कुराहट के साथ गर्दन मोड़ कर देखा तो वह लंबे डग भरता उसकी सिमत ही आ रहा था, बेचैन तड़पा हुआ। वो सीधी होकर बैठी और कब के अपने सुकड़े सिमटे वजूद को सीधा किया और पांव ठंडे पानी की लहरों में डाल दिए। मिसी, भाई की जान, तुम ठीक हो? वो पास बैठता उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर माथे पर बोसे लेने लगा और चेहरा सीने में तड़प कर छुपा दिया। भाई को बताओ, क्या तकलीफ है मेरी जान को? उसका सर सहलाते वो पूछने लगा, जबकि मुस्कान आसूदा मुस्कुराहट से उसके सीने पर सर रखे नफी में सर हिलाती उसकी शफकत को महसूस करने लगी। मुझे क्या तकलीफ हो सकती है आरिफ? किसी में हिम्मत है मुझे तकलीफ देने की? वो सर उठाए उसे देखती बोली और आरिफ उसकी सूजी भीगी आंखों की कांच के टुकड़ों में बटी किरचियां देखता लब भींच कर आंखें मीच गया। तुम इतनी पत्थर क्यों हो मिसी कि अपने भाई को भी अपनी तकलीफ में शामिल नहीं करना चाहती? बताओ मुझे, उस एसपी ने तुम्हें तकलीफ दी है? मुझे बताओ मिसी, मैं उसे गुद्दी से पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा। बोलो कुछ। वो बोला नहीं, घन गरज की तरह बरसा था। मुस्कान खामोश सी उसके कंधे पर सर टिकाए बैठी रही। कोई कुछ नहीं कह रहा आरिफ, तुम मेरे शौहर से जलो ना, वो अच्छा है। हंस कर कहते उसे लगा उसके हलक में पत्थर का गोला फंस गया हो, जिससे आवाज घुट गई आखिर में। आंखें भी बरसने को तैयार थीं, पर लबों पर वही फरेबी गहरी मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं खुद ही उस एसपी से पूछ लूंगा। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और बिफर कर वहां से जाने लगा कि मुस्कान ने बिदक कर उसका हाथ थाम लिया। शोर मत मचाओ आरिफ, मुझे मेरे वक़ार से जीने दो। शोर करोगे तो वो मुझे मजीद कमजोर समझेगा, मेरी खामोशी ही काफी है उसके लिए। झटके से उसे वापस बेंच पर खींच कर गिराती खुद उसकी गोद में सर रखकर सुकड़ी बेंच पर लेट गई। आरिफ ने शुष्तर होकर अपनी बहन का ये बदलाव देखा। उसका दिल किया फूट फूट कर रोए। क्या आज फिर मैं तुम्हें तकलीफ से नहीं बचा पाया मिसी? वो भारी आवाज में बोला और हाथ उसके सर पर फेरने लगा। मुस्कान ने उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, जबकि आरिफ ने अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। नहीं बेवकूफ, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, पर थोड़े कमीने से। वो खिलखिलाई। आरिफ ने कमीने पर आंखें फैला ली। अबे छोड़, हम में ये चलता है, बहन हूं तेरी। वो उसकी गुस्से भरी आंखों से मुतासिर न होती उसकी उंगलियों को देखने लगी। सच में बहुत बदतमीज हो मिसी, वो दांत पीसते बोला, जिस पर मुस्कान खिलखिला कर हंसी। वैसे हमने एक वादा किया था, याद है? उसने कोठे में किया जाने वाला वादा याद दिलाया तो आरिफ झुककर उसके सर पर बोसा दिए सर हिला गया। कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चाहे कोई कितना तोड़े हमें। दोनों यकजुबान होकर बोले और कहकहा लगा उठे। वाकई दोनों सब कुछ झेल कर भी कहकहा लगाने वालों में से थे। तुमने स्पेन का कहा था, याद है? वो उठ बैठी और सीरियस अंदाज में बोली। आरिफ चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ याद है, एक मुजरिम को ऊपर पहुंचाने जाना है जो यहां से भागा है। ठीक है, आज 6 बजे की मेरी टिकट बुक करवाना, ये नेक काम मैं ही कराती हूँ। उसकी नजरें उसकी तरफ से घूमी हुई थी। मिसी, आरिफ प्लीज, मैं खुश हूं। खबरदार जो आलिम को कुछ बताया या खुद कुछ किया बुरहान के साथ। तुम जानते हो उसे तकलीफ दोगे तो अपनी बहन की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो मुझे अब यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। वो सर्द लहजे में कहकर उठी और उंगली पर आंसू उठाती उसे सामने करते चांद की तरफ फूंक मारी। काश मैं तुम्हें गला घोंट कर मार देता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी तकलीफ का मुस्कान। तुम उसे बचाना चाहती हो जिसे तुम्हारी जरा कदर नहीं। तुम मुझसे कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, फिर मैं उसे बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। वो चिल्ला कर बोला और उसके कंधों से जकड़ा।
مسکان اس کی سرخ لہو پڑتی آنکھیں دیکھ کر گہرا سانس بھر گئی۔ میں برہان الوی سے محبت نہیں کرتی۔ عارف کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ میں برہان الوی سے عشق کرتی ہوں، وہ شرارت سے کہتی کھلکھلائی اور عارف کے بگڑے خونخوار مزاج دیکھ کر وہاں سے بھاگی۔ رکو مسی، وہ ہنستا سر نفی میں ہلا کر بینچ سے اپنا اور اس کا کوٹ اٹھائے اس کے پیچھے بھاگا۔ سمندر کی ٹھنڈی ریت پر دونوں بہن بھائی اپنے پاؤں کی چھاپ چھوڑتے کھلکھلائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھا عالف مسکرا رہا تھا انہیں ایک دوسرے کو پانی کی چھینٹیں مارتے دیکھ کر۔ دور صبح کا سورج آسمان پر اپنی سنہری روشنی بکھیرنے لگا۔ آرم ولا میں سیر عالم کی گود میں سر رکھی سوئی ہوئی حور العین انگڑائی لے کر بیدار ہوئی، جبکہ ٹیبل پر پاؤں رکھے صوفے کی بیک پر سر ٹکائے اپنے بازو پر حور العین کی دونوں کلائیاں ٹکائے وہ سو رہا تھا، اور اس کی انگڑائی لینے پر عالم نے آنکھیں کھولیں جب سامنے نظریں اس کے وجود پر پڑی۔ رات مہندی لگاتے کافی دیر ہو گئی تھی اور جب رمشا لگا کر چلی گئی تو عالم اسے لے کر روم میں آیا اور اب اس کے سکھانے کی ٹینشن تھی۔ تبھی ہی خود صوفے پر بیٹھ کر اسے لٹا دیا اور اس کا سر گود میں رکھتے دونوں کلائیاں اپنے سامنے بازو پر ٹکائیں، اور ایسے ہی نہ جانے کب دونوں سو گئے۔ گڈ مارننگ میری شہزادی، جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالتا بلینکٹ ڈال کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ مہندی انتہائی خوبصورت تھی۔ عالم اس کے ہاتھوں کو دیکھتا کئی بار مبہوت ہوا تھا۔ وہ جاگنگ کے لیے روم سے باہر آ کر لاؤنج میں داخل ہوا، تبھی نظریں سیدھا مسکان پر پڑی۔ وہ کچھ چونکا، وجہ اس کے ہاتھ میں بیگ، بلیک پر وائٹ دائرے والی اسکرٹ، بلیک ٹاپ پر لانگ کوٹ پہنے سنہری بالوں والی وہ لڑکی اجلت میں سفید کانچ کے گلاس میں جوس پیتی کچن سے نکلی۔ وہ جیب میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا ہو گیا کہ مسکان گڑبڑا گئی۔ میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے گلا کھنکھار کر عالم کو مخاطب کیا۔ وجہ؟ ابرو اچکاتے چہرے کو جنبش دی۔ وہ میں ایک کیس کے لیے اسپین جا رہی ہوں 15 دنوں کے لیے، کچھ دیر میں فلائٹ ہے تو سوچا آپ کو بتا دوں، عارف سے بات کر لی ہے، کیا اجازت ہے؟ وہ بیگ چھوڑ کر چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور لاٹ سے لب دبا کر سر کندھے پر ٹکا دیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی سمی بھی مسکرائی اس پیار بھرے منظر کو دیکھ کر۔ اگر تم اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہو تو جاؤ، اگر مجبوری میں جا رہی ہو تو وہ مجبوری بتاؤ مجھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مسکان نے ہڑبڑا کر ان بری آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظریں پھیر لیں۔ مجبوری کوئی نہیں مجھے عالم، کچھ فریش ایئر اور دماغی سکون کے لیے جا رہی ہوں تو سوچا یہ کام بھی کر دوں۔ اس کے بتانے پر عالم نے اس کا گال تھپتھپا کر سر پر بوسہ دیا۔ مجھے امید ہے تم اپنا خیال رکھو گی، وہ کہتا وہاں سے نکلا اور مسکان نے کب کا اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، اور پھر وہ نمی آنکھوں میں لیے سمی سے گلے مل کر رمشا کے پاس آئی۔ تم میرے بچے کی ڈاکٹر ہو، خیال رکھنا اس کا، میں صرف کچھ دن کے لیے جا رہی ہوں پر رہوں گی اس کے پاس ہی، خبردار اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ اسے دیکھتی وارن کر رہی تھی جبکہ رمشا کا سہما روپ دیکھ کر عارب ناگواریت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا جو بلا وجہ اسے خائف کر رہی تھی۔ اوہ بچے کی اماں، ڈاکٹرنی جی کو مت سہماؤ، وہ بہت اچھا خیال رکھتی ہیں، تم اپنا خیال رکھو بس۔ عارب کے کہنے پر وہ ہوں کر کے گردن اکڑا کر سیڑھیاں چڑھتی روم میں داخل ہوئی تو نظریں سیدھا بلینکٹ پر رکھے اس کے ہاتھوں پر گئی جہاں مہندی لگی ہوئی تھی اور وہ گہری نیند میں تھی۔ مسکان آنسوؤں کا گولا سینے میں اتار کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی اور بے خودی میں دیکھنے لگی۔ تم میرا سب کچھ ہو میری جان۔ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ اپنی ہچکیاں دبا گئی اور زور سے منہ پر ہاتھ ٹکا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ شکر تھا کہ یہ عالم کا روم تھا جو یہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے بھائی کا بھی ضبط توڑ دیتی۔ کچھ دیر بعد منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے گہرے سانس بھرے اور پھر جھک کر اس کے چہرے کے بوسے لیے۔ میسنی، ہور نے جھپٹ کر آنکھیں کھولی اور خوشی سے بولی، تم کب آئیں مجھے بتایا نہیں؟ دیکھو میں نے مہندی لگائی ہے، میں کب کی تمہیں دکھانے والی تھی۔ وہ خوشی سے چہکتی اٹھ بیٹھی جبکہ مسکان اس کے ہاتھ پکڑے بے آواز رو رہی تھی۔ سو جاؤ، میں پھر آ کر دیکھوں گی کیونکہ اس کا رنگ کافی گہرا ہے، نہیں اترے گا میرے آنے تک۔
उसे लिटा कर वहां से निकलती चली गई, जबकि हूर बौखलाई सी मीसनी करती रह गई। हैं, इसे क्या हुआ? ऐसे जगाकर प्यार देती चली गई। वो वापस लेटती पुरसोच से बोली, मैं इतनी उम्मीदें लगाई बैठी थी मीसनी, पर तुमने तो ठीक से डिजाइन ही नहीं बताया कि कैसी लगी है। वो उदास हो गई और इस उदासी ने उसकी रूह को उदास कर दिया। पर दर हकीकत तो ये उदासी उस लड़की की थी जो उसके गिर्द छोड़कर वहां से निकलती चली गई थी। बुरहान अलवी, मुझे यकीन है हम फिर नहीं मिलेंगे। आखिरी अनाउंसमेंट सुनते आलिफ और आरिफ को बाय करती सोचती वो उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। पीछे आरिफ ने उसकी तकलीफ को महसूस करते आंसुओं का फंदा हलक से उतारते नजरें फेर ली। कुछ रिलैक्स होने दो उसे, फिर सोचते हैं कुछ। आरिफ के कंधे पर हाथ रखते वो बोला, इंशाल्लाह। वो सर हिलाता अपनी गाड़ी की सिमत चला गया। एक ही तो बहन थी, वो भी इतनी तकलीफ में। क्या हुआ? बी रूम में आती उससे पूछने लगी, जो मोबाइल हाथ में थामे उसे घूर रही थी। बी की आवाज पर चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, तकुआ अपिया ने मासरत कर ली है शादी में आने से, क्योंकि उन्हें अर्जेंट हवेली जाना पड़ा। आगा जान की हालत खराब हो गई थी। उसने गहरा सांस भरते मायूसी से बताया। अच्छा, फिर कहा नहीं कब आएगी? बी उनके गांव से थी और उनके वसीले से ही नूरुल ऐन हुरुल ऐन की दोस्ती तकवा से हुई थी। हाँ, कहा है कि प्रॉमिस वलीमे में आएगी। वो मुंह बसोरे बोली और बेड पर गिर गई। अच्छा, दिल बड़ा करो, आएगी तो सही ना। वो उसके पास आकर बैठी। नूर उन्हें देखती मुस्कुराई और उनके कंधे पर सर टिका दिया। बाहर से ढोलक की आवाज जोरों शोर से आ रही थी। खानदान तकरीबन आधा उमड़ आया था घर में। घर में अभी से पांव रखने की जगह नहीं थी। रात को उसकी रुखसती थी, महफिल अरूज पर थी, सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बेड पर उसका गोल्डन सुर्ख इम्तिजाज का भारी लहंगा रखा था, साथ ही हैवी ज्वेलरी, कंगन, चूड़ियां, पाजेब, नथ हीरों से जड़ी थी। ब्यूटिशियन कुछ देर में पहुंचने वाली थी, क्योंकि तैयार करते काफी देर होने वाली थी। आज दिन के 2 बज रहे थे अभी। नूर चौंकी तब जब अचानक दरवाजा खुला और उजलत में दाद अंदर दाखिल हुआ। बी और नूर ने हैरत से उसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुराया। नूर चीप कर सर झुका गई। दाद, तुम यहाँ बेटा? बी बौखला कर खड़ी हुई। तब दाद होश की दुनिया में लौटा और झीप गया उनके सामने। कुछ जरूरी काम था बी, 2 मिनट का। उसके कहने पर बी नूर के हवाइयां उड़े चेहरे को देखती सर हिलाकर वहां से निकली। बी के जाते ही वो लपक कर उसके पास आया। तुम पहले से ज्यादा हसीन होती जा रही हो, या मेरी नजरों का बहकावा है बोनी? उसके रुख मोड़ने पर दाद झुककर कान में सरगोशी करता फूंक मारने लगा। प्लीज दाद, जाएं। सटपटा कर वो बाथरूम में भाग गई। दाद कहकहा लगा उठा। ये क्या खुश होने के लिए काफी नहीं था कि वो इस रिश्ते से खुश थी, इसीलिए शर्मा रही थी, उससे छुप रही थी, बगैर चीख चिल्लाहट के। कुछ सोचते सर हिलाकर वो अपनी वॉच ढूंढने लगा। साइड टेबल पर ना पाकर वो सिलवटें माथे पर सजाकर दराज में ढूंढने लगा, पर वहां से भी ना काम। उसने फिर से टेबल को देखा और गुस्से से सब कुछ नीचे फेंकते वॉच को ढूंढता रहा। ये क्या कर रहे हैं दाद? हवास पाख्ता ठा की आवाज से रूम में आती वो बोली। जहां उसका रूम बिखरने लगा था, वहीं वो खौफ से सहम रही थी उसकी बिपरी हालत देखकर। नूर, यहाँ मैंने वॉच रखी थी, कहाँ गई? वो सोफे, ड्रेसिंग टेबल के दराज, कालीन पर बेड के नीचे ढूंढता हुआ उसके पास आया और लहू आंखों से उसकी खौफ से फैली आंखों में देखने लगा। वो मैंने वार्डरोब में रखी थी। रोने की पूरी तैयारी करते उसने वार्डरोब की तरफ इशारा किया। आलिफ उसे छोड़कर लपक कर वहां गया। नूर तासुब से उसकी पुश्त को देखती आंखें मसलने लगी। वार्डरोब खोलते ही वो अंदर कपड़े निकालता देखता रहा कि अचानक नजरें उस पर पड़ी। ओह शुक्र मेरी जान, मेरी तो बुरी हालत होने वाली थी, तुमने बचा लिया। दाद अपनी घड़ी सही सलामत नूर के यूं संभालने पर कलाई में बांधता उसके पास आया और माथे पर बोसा देते आंसू लबों से चुनकर उसे सीने में भींच दिया। ऐसा क्या है इस घड़ी में दाद? वह बड़ी हिम्मत करती उससे दूर होकर बोली। इसमें? दाद ने चलती हुई घड़ी को देखा। बस अब सिर्फ घंटों का इंतजार करो, जब तुम मेरी शरीके सफर बनकर मेरे रूम में आओगी तो हर चीज तुमसे शेयर करूंगा, बहुत कुछ जो तुमसे छुपा हुआ है।
ठीक है, वो कहता उसकी आंखों में देखता अचानक ही उस पर झुका था। नूर बौखला कर पीछे भागी। आज तो ऐसा नहीं चलेगा, उसे पीछे से हसार में लेकर जज्बों से चूर लहजे में कहते कान की लो को छूना चाहा कि नूर मचल उठी। दाद प्लीज, वो सांसों के बेरब्त होने पर बमुश्किल कहती उसके हसार से निकली। दाद उसके ब्राउन कपड़ों में सरापे को देखते वहां से जाने लगा। अच्छा सही है, डरो ना, बस रात को इंतजार करो, आज तो तुम गई मेरे हाथों, मायनी खेजी से कहता वो हंसता हुआ चला गया। जबकि उसके जाते ही नूर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। वो भाग कर दरवाजे के पास आई और लॉक करके चीजें समेटने लगी। साथ ही रूम संवार कर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में गई और वहां से छुपाई हुई वॉच निकाल कर उसे हंसती हुई देखने लगी। सुबह उसे वॉच जब मिली तो दाद की परवाह किए बगैर उसने उस सीक्रेट एजेंट को जल्दी से तस्वीरें बनाकर भेजी और 12 बजे के वक्त तकरीबन उसके लिए दूसरी वॉच आ गई थी। वो उस एजेंट से बात करके सब कुछ समझती अब वॉच उठाए उसे देख रही थी। चलो पहली शुरुआत करते हैं आलिफ के एंड की। वो खिलखिलाती हुई दुपट्टे में वॉच छुपाकर स्लीपर पहनती रूम से निकली।